हाँ जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਨ ਏਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਕੁਛ ਮੇਨਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚन ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੜੱਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਏ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਾਪਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਹੜੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ
हैगी है तो यह प्रोटो हिस्टोरिक अपने पास पीरियड हैगा। एक आपने कल प्री हिस्टोरिक पीरियड सारा डिस्कस कर लिया सी कि जिथे जिहड़ा मैन सीगा उहनूं आर्ट ऑफ राइटिंग है जिहड़ी नहीं आंदी सीगी और वह प्री हिस्टोरिक पीरियड सीगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड सीगा आपने फर्स्ट लैक्चर दे विच भी समझिया सीगा इन्हां सारियां चीज़ां नूं कि जिथे जिहड़ा मैन सीगा उहनूं आर्ट ऑफ राइटिंग तो आंदी सी बट उस स्क्रिप्ट नूं आपां डिसाइफर है जिहड़ी नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो यह की हैगा जी पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टरी। बहुत ध्यान दे विच ये चीज़ां तुसीं रखनी हैगियां और यह फस्ट अर्बन सिविलाइजेशन सीगी इन इंडिया दे विच, ये भी चीज़ तुसीं ध्यान रखोगे। और इस तो बिना ये कंटैंपररी कुछ होर सिविलाइजेशन सीगियां जिवें सुमेरियन हो गया, मैसोपोटामियन नूं बेसिकली सुमेरियन कहा जाता सी, कुछ चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करदियां सी, कुछ इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी सीगियां जिहड़ियां एग्जिस्ट है जिहड़ियां करदियां सीगियां। ठीक है जी, तो इन्हां बारे भी आपां लेटर ऑन डिस्कस करांगे। ओवरव्यू आपां थोड़ा जिहा देख लिया इत्थे। हुण आपां अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल दे विच आपां पीरीयड डिस्कस करिए तो वह जिहड़ा पीरीयड हैगा 3300 तो 1300 BC तक का जिहड़ा पीरीयड हैगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपने पास पीरीयड है जिहड़ा हैगा है। हुण देखो वैसे इनू इस दे अकॉर्डिंग आपां ने इस हड़प्पा नूं 3 डिफरेंट फेसिस दे विच की कीता होया है, डिवाइड है जिहड़ा कीता होया है। हुण वो 3 फेसिस किहड़े-किहड़े ने बेसिकली एक तो अर्ली फेस आपां बोलदे आ कि जदों हड़प्पा की हुई है स्टार्ट ही हुई है। ठीक है जी, उस तो अगला फेस अपने पास हैगा जी मैच्योर फेस, जिहड़ा एक्चुअल दे विच आपां फेस है जिहड़ा पढ़दे आ अपने सिलेबस दे विच जिहड़ा हैगा इस फेस है वो यही फेस हैगा मैच्योर फेस। तो मैच्योर फेस अराउंड 2600 कह लो या कई जगह ते तुहानूं फिगर है जिहड़ी 2500 भी मिलेगी। ठीक है, तो दोनों ही सही ने, थोड़ा बहुत इन्ना चलता हिस्टरी दे विच 2600 तो लैके 1900 BC तक अपनी जिहड़ा यह पीरीयड हैगा ये अपना की ही है अपना मैच्योर फेस हैगा। लेट फेस 1900 तो लैके 1300 BC तक अपना जिहड़ा फेस सीगा वो लेट फेस सी, मतलब ये लास्ट वाला फेस सी। ये जिहड़ा इनिशियल फेस सी ये वो फेस सी जदों एक सिविलाइजेशन पूरी की हो रही सी, डेवलप है जिहड़ी हो रही सी, तां करके आपां ने इनू नाम दिता हैगा मैच्योर फेस। क्लीयर, चलो हुण आपां थोड़ा जिहा इहदे बारे इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां देख लैंदे आं। आपां इहदे नाम तो सॉरी इहदियां जिहड़ियां इमेजिस ने इन्हां तो ही आपां जिहड़ियां इन्हां दियां फेसिस ने उन्हां नूं समझांगे। देखो जिहड़ा अर्ली फेस सीगा इंडस वैली सिविलाइजेशन सॉरी मैच्योर फेस सीगा और जिहड़ा लेट फेस सीगा उन्हां दे विच देखो थोड़ा थोड़ा मेजर डिफरेंस है। बाकी इत्थे कुछ इन्हां दियां साइट्स लिखियां होईयां ने, बाकी वो आपां लेटर ऑन डिस्कस ही करांगे पूरे चैप्टर दे विच। पर इत्थे मेजर क्यों आपां ने इन्हां नूं डाइवर्सीफाई कीता होया 3 डिफरेंट फेसिस दे विच उस चीज़ नूं आपां ने समझना हैगा है। तो हुण जिद्दां ही आपां ने ये डिस्कस किया है कि जिहड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पास हैगी है वो बेसिकली की है इंडस रिवर के सराउंडिंग ही एक सिविलाइजेशन सीगी, दैट्स वाई आपां उन्हां नूं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। हुण देखो जिहड़ी ये गल हुई है ये मैच्योर हड़प्पा की गल हो रही है, ना कि यह लेट हड़प्पा की और प्री हड़प्पा की गल हो रही है। तो क्योंकि ये चीज़ मैं क्लैरीफाई करदा कि जिहड़ा प्री हड़प्पा फेस सीगा और जिहड़ा मैच्योर हड़प्पा फेस सीगा और जिहड़ा पोस्ट या सॉरी लेट हड़प्पा फेस सीगा वो तीनों अलग अलग जगह दे विच जिहड़ा लाई करदा सीगा। अगर मैं अज दा इंडिया दा मैप है जिहड़ा उसनूं देखां तो अगर उहदे अकॉर्डिंग देखिए तो इंडस वैली जिहड़ी अपनी इंडस रिवर हैगी है वो कुछ इत्थे हैगी है ना, अपना जिवें इंडिया उपरों इदां दा हैगा है। ठीक है, तो इत्थों दी इंडस है जिहड़ी मतलब निकलदी हैगी है। तो आपां मैच्योर फेस इत्थे इंडस दे नियर बाय ही आपां नूं इन्हां दियां की मिलियां ने, जो भी इन्हां दी शहर वगैरह आपां नूं सिटीज़ वगैरह इत्थों ही आपां ने डिस्कवर कीतियां ने। कि ये हमेशा लई इत्थे सीगे तां नहीं, ये हमेशा लई इत्थे नहीं सीगे। इस तो पहलां प्री फेस दे विच जिहड़े ये हड़प्पन पीपल सीगे ओह इस साइड अपना जिहड़ा अफगानिस्तान वाला जिहड़ा एरिया हैगा इस साइड दे विच ये की करदे सीगे रहिंदे सीगे। तां मतलब प्री हड़प्पन फेसिस दे विच ओह किस साइड सीगे, इंडिया तो बाहर वाला अज दा जिहड़ा एरिया हैगा अफगानिस्तान वाला ईरान वाली साइड उस साइड ये रहिंदे सीगे प्री हड़प्पन। मतलब प्री हड़प्पन दे विच इन्हां दी जिहड़ी लोकेशन सी ओह अलग सी। मैच्योर हड़प्पा दे विच कित्थे आ गए, ये इंडस दे सराउंड आ गए। और लेट हड़प्पा पीरीयड दे विच ये बेसिकली
कित्थे आ गए जी अपने इन्ना गंगा यमुना प्लेन्स दे विच है जिहड़ा शिफ्ट हो गए। बेसिकली जिहड़ा पहला फेज सीगा उन्हां दा आ सीगा कि ओह इंडिया तो बाहर मतलब अज कहां कि बाहर, दूसरा फेज उन्हां दा आ सी कि ओह इंडस वैली सिविलाइजेशन दे सराउंड रह रहे सी, तीसरा फेज उन्हां दा आ सी जिथे ओह गंगा यमुना प्लेन्स दे विच है जिहड़े मूव कर गए सीगे। क्योंकि अपने आपां किहड़ा फेस पढ़दे आ, मैच्योर हड़प्पा फेस पढ़दे आ, तां करके आपां इस नूं बोलदे आ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यह जिहड़ा फेस हैगा वो इंडस दे ही सराउंडिंग है जिहड़ा सीगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारिया मतलब ये देखो बहुत सारिया चीज़ां होईयां होणगियां जिन्हां ने इन्हां नूं इस जगह तो इस जगह ते मूव करता, इस जगह तो इस जगह दे विचों मूव करता। जदों वो प्री हड़प्पन फेस दे विच सीगे वो इन्ने डेवलप्ड नहीं सीगे, उन्हां दी जिहड़ी इकोनॉमी सीगी वो इन्नी ज़्यादा डेवलप नहीं सी, प्रॉपर अर्बनाइजेशन है जिहड़ी स्टार्ट नहीं हुई सीगी। ठीक है जी, तां करके ये जिहड़ा फेस है इन्ना डेवलप फेस नहीं सीगा, प्री हड़प्पन फेस है जिहड़ा। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मैच्योर हड़प्पा पीरीयड, तां मैच्योर हड़प्पा पीरीयड दे विच वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली साइड है जिहड़ा मूव हो गए सीगे और इत्थे वो सैल्फ सफिशिएंट बन गए सीगे एग्रीकल्चर दे विच। तां इत्थे ड्रास्टिक चेंज आया उन्हां दी लाइफ स्टाइल दे विच, सोसाइटी दे विच। तां इह की सीगी फस्ट अर्बनाइजेशन है जिहड़ी उहदी शुरुआत है इंडिया दे विच होई सीगी। ठीक है जी, तां करके इस नूं आपां की बोलदे आ मैच्योर हड़प्पा। लेट हड़प्पा पीरीयड बेसिकली फिर उही एक जिहड़ी अर्बनाइजेशन बहुत पीक ते सीगी, ठीक है, बहुत ग्लोरी सी, ओह की होनी शुरू होगी, डिक्लाइन होनी शुरू होगी। मतलब लेट हड़प्पा पीरीयड दे विच बेसिकली जदों ये अर्बनाइजेशन नूं डिक्लाइन इहदा स्टार्ट हो गया तां उस पीरीयड ऑफ टाइम नूं या उस हिस्से नूं आपां इंडस सॉरी इहदी अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन दे किहदे विच रखदे आ, लेट हड़प्पन पीरीयड दे विच। तां अपने पास तीन ही इंपॉर्टेंट इन्हां दे फेस हैगे ने और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने लिए आह वाला जिहड़ा हैगा है फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसीं यही फेस नूं आपां अज पढ़ांगे ते यही फेस नूं आपां ने डिस्कस करना हैगा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारिया चीज़ां सीगियां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लेटर ऑन मतलब बेसिक्स ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने विद रिस्पैक्ट ਇੰਨਾ कुछ नहीं हैगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ जस्ट बेसिक है ਜਿਹੜਾ ਉਹ चीज़ पता होनी चाहिए है कि प्री हड़प्पा ਦੇ और लेट हड़प्पा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क सी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ लोकेशन कित्थे सीगी। उस तो बाद अपना ਜਿਹੜਾ सिलेबस है वो मैच्योर हड़प्पा ਨੂੰ ही टारगेट है करता है। ठीक है जी, तो चलो हुण थोड़ा देख भी लैंदे, तुहानूं दिखा भी दिंदे आ इमेज दे विच। तां देखो जी तुसीं देख सकते हो कि आह वाला जिहड़ा हिस्सा हैगा ये अपना किहड़ा पीरीयड हैगा, अपना अर्ली फेस जिन्हों आपां प्री हड़प्पन फेस बोलते हैगे आ। देखो इत्थे लिखिया भी होया ये ओल्डर दैन चैल्कोलिथिक सी, ज़्यादा लार्जर सिटीज़ नहीं सीगियां, ठीक है, नॉट मच एक्सपर्टाइज नहीं, कोई स्पैशलाइजेशन नहीं सी और इस तो बिना कोई इंडस प्लेन दे विच इस तो पहला वो मूव नहीं हुए सीगे। ठीक है, तो ये एक मतलब पिछड़िया होया थोड़ा जिहा एरिया आपां पंजाबी दे विच कह सकते हैं कि जो इन्ना फ्लरिश इन्नी डेवलपमेंट है जी नहीं हुई सी। ऑन द अदर हैंड अगर आपां यही वाला देखिए एरिया देखिए तो ये अपने पास कम्यूनिटी किहदे विच टर्न हो गई सीगियां, अर्बनस लार्ज अर्बन सेंटर्स दे विच की हो गई सीगियां, टर्न हो गई सीगियां और ये विच आपें काफ़ी सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो मैच्योर हड़प्पा फेस दे विच आपां डिस्कस है जिहड़ा करांगे। तो इत्थे देखो नवीं नवीं साइट्स सीगियां जिवें सुतका गेंडर हो गया, अपने पास काफ़ी सारिया होर सीगियां, मांडा हो गया, इत्थे नवीं नवीं साइट्स ने वो की हो गई इत्थे डिस्कवर हो गई। उस तो बाद जिहड़ा ये वाला लास्ट फेस है वो की हो चुके सीगे जी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली साइड तो मूव करके वो अपने गंगा यमुना प्लेन्स दे विच अपने पास आ गए सीगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जिहा तुहानूं की होना चाहिए पता है जिहड़ा होना चाहिए। चलो हुण आपां इहदे बारे ही गल करांगे मैच्योर हड़प्पा फेस दे विच। इहदे विच अपनियां यह 4 साइट्स है जिहड़ियां दित्तियां होईयां ने, इन्हां नूं थोड़ा जिहा आपां डिस्कस है कर लैंदे हैं क्योंकि यह अपना प्रीलिम्स ओरीएंटेड क्वेश्चन है बन सकता है और इहदे विच इस तो बिना आपां मेन्स राइटिंग दे विच भी इहनूं की कर सकते हैं, यूज़ है जिहड़ा कर सकते हैगे आ। ये बेसिकली जिहड़ा मैप दिता होया है जी वो बेसिकली अपना ये जिहड़ा मैप हैगा बेसिकली ये अपना नदन मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट, वैसटर्न मोस्ट साइट और सदर्न मोस्ट साइट इन्हों डिफाइन है जिहड़ा करदा हैगा। चलो आपां देखते हैं। तो जिहड़ी अपनी ये हैगा जी
ਨਦਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਦਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਦਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਕੱਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹੜੱਪਨ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਈ ਮੋਸਟ ਈਸਟ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਨਾਰਥ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮਾਂਡਾ। ਮਾਂਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਮਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਂਡਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਦਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਂਡਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਡਾ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਚਿਓਰ ਫੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤਕਾ ਗੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਤਕਾ ਗੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦਾਇਮਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਾਇਮਾਬਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰ यूपी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਟ ਹੜੱਪਨ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਦੇਖੋ ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਮਾਬਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਟ ਹੜੱਪਾ ਫੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन किदां दा आ जाए। तो आई होप तुहानूं इत्थों तक क्लीयर हो गया होएगा। हड़प्पा बारे आपां ने गल कर ली है, हड़प्पा के 3 नेम्स बारे गल कर ली है, हड़प्पा दी डिफरेंट फेसिस बारे गल कर ली है, ठीक है। आपां ने कुछ साइट्स देख लिया ने, कुछ लेट हड़प्पन पीरीयड नूं बिलोंग करदियां ने, कुछ मैच्योर हड़प्पन पीरीयड नूं बिलोंग करदियां ने और कुछ आपां ने की देख लिया जिहड़ा लेट हड़प्पन पीरीयड हैगा उहनूं बिलोंग करदियां ने। तो हुण जिवें आपां कोई भी साइट पढ़दे हां तां आपां नूं इन्ना डिटेल दे विच जाण दी जरूरत नहीं भी प्री दी है या इह दी है किहड़े फेस दी हैगी आ। ਆਪਾਂ ਮੈਚੁਰ ਹੜੱਪਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਫਾਰਮੋਸਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन दे विच मैं ओवरऑल दसां तो सब तो बेस्ट चीज़ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन दे विच मिली हैगी है वो हैगी इन्हां दी टाउन प्लैनिंग। उदां दी टाउन प्लैनिंग अज दे टाइम अपनी चंडीगढ़ की जो टाउन प्लैनिंग है वो इस तरीके की टाउन प्लैनिंग है। मीनस कि कितनी एडवांसमेंट सीगी उस टाइम दे मतलब पीरीयड दे विच और कितना हाईली ये अर्बनाइज्ड एरिया होएगा, ये आपां नूं इन्हां दी टाउन प्लैनिंग तो की है पता लगता हैगा। तो इन्हां दी टाउन प्लैनिंग दी की करैक्टरिस्टिक्स सीगियां उन्हां सारियां चीज़ां बारे हुण आपां ने डिस्कस है जिहड़ा करना हैगा। टाउन प्लैनिंग ते डिफरेंट तो क्वेश्चन बन सकता हैगा अलग तो, ठीक है जी। मीनस दे विच भी क्वेश्चन बन सकदा और प्रीलिम्स दे विच भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ने इस फेज तो पूछे है जिहड़े जा सकते हैगे ने। तां इनू भी आपां वन बाय वन डिस्कस है जिहड़ा करदे हैगे।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਪ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਟਾਡਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਾਡਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਏਰੀਆ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੂਲਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਕਲਾਸਿਕ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਟਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ हैंड अगर लोअर एरिया की मैं गल करा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੋਗੀ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਟਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹਾਊਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਕਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है। फोर्टिफिकेशन मीनस वड्डियां वड्डियां वॉल्स सीगियां सिटी के बाहर है जिहड़ियां क्रिएट कीतियां होईयां सीगियां। सिटी वॉल एक स्पैसीफिक की हुंदी सीगी, हर मतलब जो भी सिटीज़ आपां नूं मिलियां ने ज़्यादातर वो सारी ने सारियां सिटीज़ की हुंदियां सीगियां फोर्टिफिकेशन हुंदियां सी। और अंदर एक की हुंदा सीगा जी मेन अपना गेट हुंदा सीगा, एंट्रेंस गेट। इत्थों दी आपां अंदर जांदे सी, इस साइड सिटाडल है, इधर लोअर एरिया हैगा। इत्थे जिहड़े ग्रिड पैटर्न दे विच आपां नूं हाउसेस मिले ने, ठीक है जी। और इन्हां दा वैल प्लैंड की सीगा ड्रेनेज सिस्टम सीगा, वो आपां अगे लेटर ऑन देखांगे, ठीक है जी। चलो तो हुण इहदे विच उही चीज़ लिखी हुई है जी, रेज्ड पार्ट ऑबवियसली सिटाडल सीगा, ठीक है, जिहदे विच रूलर्स सीगे या फिर अच्छे क्लास के जिहड़े लोग सीगे वो रहिंदे सीगे। और इस तो बिना ग्रीनरीज देखो जी मार्केट एरिया भी सीगा वो भी सिटाडल दे विच सीगा। हुण देखो ग्रीनरीज सीगियां जिहड़ियां कित्थे सीगियां, सिटाडल दे विच ही रखियां गईयां सी क्योंकि ग्रीनरीज दे विच ऑबवियसली ग्रेन नूं स्टोर करके रखिया जांदा सी। तो देखो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक हिस्से नूं उपर चक के या अपर पार्ट बनाया गया क्योंकि कोई फ्लड टाइप का कोई सीन हो सकता जिहदे करके इन्हां ने ग्रीनरीज वाला जिहड़ा स्टोरेज हैगी वो अपने अपर पार्ट दे विच है जिहड़ी रखी हुई सी कि अगर किते भी कोई इदां दी प्रॉब्लम आंदी है तो इन्हां दा जिहड़ा फूड है वो की रहे, सिक्योर है जिहड़ा रहे, ठीक है जी। तो जिद्दां हुण देखो लिखिया है पब्लिक बिल्डिंग हो गया, इस तो बिना मार्केट एरियाज हो गया, हाउसिस ऑफ रूलर्स हो गया और वर्कशॉप सीगियां, ये सब कुछ किहदे विच सीगा, सिटाडल दे विच सीगा। और जिहड़े कॉमन पीपल सीगे वो लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी दे विच है जिहड़ा रहिंदे सीगे, ठीक है। तो इत्थों आपां नूं सोशल हायरार्की है जिहड़ी उह तो पता लगदा है कि किद्दां एक हायर क्लास सीगी और दूसरी जिहड़ी क्लास सीगी उस तो नीचे सीगी, ठीक है जी। इस तो बिना पब्लिक प्राइवेट स्फीयर का भी पता लगता है कि इत्थे अपने पब्लिक ऑफिस सीगे ते बाकी जिहड़े कॉमन लोग सीगे वो नीचे रहिंदे सी। और यह की सी एक मॉडर्न टाउन प्लैनिंग जिहड़ा की सीगा इन्हां दा सिस्टम सीगा, ठीक है जी। लोअर पार्ट दे विच कॉमन जिहड़े सिटीजन सीगे ओह रहिंदे सी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो हुण आपां नैक्सट देखते हैगे आ स्ट्रीट्स बारे, तो थोड़ा जिहा उहनूं भी आपां ध्यान देखते हैं, नाल ही लैके चलते हैं जी उपर वाले उसनूं। स्ट्रीट्स तो देखो जी स्ट्रीट्स की किस तरीके दियां सीगियां, स्ट्रीट्स अपने पास ग्रिड पैटर्न दे विच ही एग्जिस्ट करदियां सीगियां। मतलब जिहड़ियां स्ट्रीट्स सीगियां एक दूसरे नूं रिक्टेंगुलर एंगल दे राइट एंगल दे उपर कटदियां सीगियां, तो जिहदे नाल सिटी दे विच काफ़ी सारे इदां करके रिक्टेंगुलर ब्लॉक है जिहड़े आपां नूं देखण नूं मिले हैगे, ठीक है जी। आपां देखदे भी हां, अपनी इमेज भी हैगी है जी अपने पास, तो तुसीं देख सकदे हो इत्थों कि ये जिहड़ियां आह की ने स्ट्रीट्स हैगियां ने जिहड़ियां आपस दे विच की ने जी रिक्टेंगुलर फॉर्म दे विच कटदियां ने। और यह अलग अलग रिक्टेंगल्स फॉर्म दे विच आपां नूं की दिख रहे ने, जिहड़े हाउस ने वो दिख रहे ने, ठीक है जी। सिटाडल वाला एरिया हो गया, एक कॉमन पीपल वाला एरिया हो गया। और इत्थे आपां देख सकते हैं कि ये की कीती हुई है जी, फोर्टिफिकेशन है जिहड़ी सिटी दी कीती हुई है, ठीक है जी। तो सिटी किदां दियां सीगियां, ग्रिड पैटर्न दे विच सीगियां, एक दूसरे नूं की करदे सीगियां,
सही राइट एंगल ते कटदियां सीगियां। हुण राइट एंगल का मतलब अगर इन्हां नूं राइट एंगल का पता तो यह काफ़ी अच्छी एक्सीलेंट नॉलेज सीगी इन्हां नूं मैजरमेंट तो इत्थों इन्फ्रेंस आपां ये कट सकते हैं। अपने हिस्टोरीयंस ने यह कढ़िया कि अगर इन्हां ने इन्ना वैल प्लैंड सिस्टम है जिहड़ा बनाया होया सीगा कि जिहड़ियां स्ट्रीट सीगियां राइट एंगल के उपर कटदियां सीगियां तो इन्हां नूं मैजरमेंट दी और अर्बन प्लैनिंग पीपल नूं बहुत अच्छी तरीके नाल उन्हां नूं नॉलेज है जिहड़ी सीगी। ठीक है जी, चलो हुण आपां अगे देखते हैं तो इन्हां दा जिहड़ा ड्रेनेज सिस्टम सीगा, ड्रेनेज बेसिकली की सीगा हर घर दे विचों जो भी इन्हां दा वेस्टेज सीगा पानी सी अदर थिंग्स सीगियां ओह एक ड्रेनेज दे विचों ही निकलदियां सीगियां और जिहड़ा ड्रेनेज सीगा ओह मेन सरफेस तो नीचे जाके की होया सीगा बनाया होया सी और बहुत सारी जगह ते बहुत सारी कि ऑलमोस्ट सब जगह दे उपर इस ड्रेन सिस्टम नूं कह लो उन्हां नूं बहुत अच्छी तरीके दे नाल इन्हां ने की कीता होया सीगा कवर कीता सी। वड्डे वड्डे जो गटर सीगे उन्हां नूं जिहड़ियां अपनी स्टोन स्लैब सीगियां उन्हां दे नाल इन्हां ने कवर है जिहड़ा कीता होया सी। तां देख लैंदे आ ड्रेन कनैक्टेड ऑल द हाउसिस सारे घर मतलब एक ड्रेन होएगा जिहड़े कि सारे घर का जिहड़ा वेस्ट है उत्थे आएगा लैके जाएगा एंड वर मेड अप ऑफ मोटर ठीक है लाइम एंड जिप्सम अलग अलग वो है दिते हुए ने जी जिन्हां दा बनया होया एंड कवर्ड विद द लार्ज ब्रिक स्लैब फॉर ईजी क्लीनिंग। तो उन्होंने जिहड़ा मेन अगे जाके हुण देखो एक पर्टिकुलर सुसाइटी हैगी है या एक ये कह लो कि कॉलोनी हैगी है उन्हों सब का वेस्ट है जिहड़ा सब दे घरां दे विच एक पर्टिकुलर जगह के उपर आंदा है अगे फर्दर गटर दे विच जांदा है और उन्हां गटर्स नूं इन्हां ने वड्डियां वड्डियां स्लैब्स दे नाल की कीता होया सीगा कवर कीता होया सी ताकि जदों भी जरूरत पएगी तो उसनूं की कीता जा सके क्लीन है जिहड़ा कीता जा सके। ठीक है जी, इट शोज़ हड़प्पा जिहड़े पीपल ने उन्हां नूं अपनी हैल्थ दा ठीक है जी साफ सफाई दा बहुत ज़्यादा उन्हां ने की रखिया है ध्यान है जिहड़ा कीता हैगा। ठीक है, हुण आपां इहदे विच इह वी देख लैंदे आ तुसीं देख सकदे हो आ की हैगा जी अलग अलग हाउसिस ने उतों बाहर आ रहे हैं जी जिवें आ हाउस सीगा फॉर एग्जाम्पल इत्थों पानी है जिहड़ा इत्थों बाहर आ रहा है ड्रेनेज दे विचों और ये पानी इत्थों जांदा जांदा या इधर नूं जांदा जांदा किसी पर्टिकुलर जगह के उपर जाके गटर दे विच गिर जाएगा और फर्दर उस गटर का कनैक्शन किसी नियर बाय रिवर दे विच जिहड़ा इन्हां द्वारा कीता होया सीगा। और देखो ये जिहड़ियां अपने ड्रेनेज सिस्टम हैगा किस तरीके दे नाल इन्हां ने उन्हां नूं की कीता होया जिहड़ा कवर है कीता होया। क्लीयर, तो इत्थों आपां नूं पता चलदा है कि किन्नी ज़्यादा ये अपनी हैल्थ लिए कॉन्शियस सीगे। ठीक है जी, किन्नी ज़्यादा वैल प्लैंड इन्हां दा ड्रेनेज सिस्टम सीगा। तो ये अपना हैगा जी सिटाडल देखो आ वाला सिटाडल वाला एरिया सीगा जी इत्थे अद्धा करके माउंट दिखदा है जी आपां नूं और जिहड़ा नीचे वाला आ हिस्सा हैगा ये अपना की सीगा लोअर पार्ट सीगा। तो दो अपर एंड लोअर पार्ट दे विच की होया होया सीगा डिवीजन है जिहड़ा होया होया सी। ये जिहड़ी पिक्चर हैगी है ये मोहनजोदड़ो दी हैगी है जी। ठीक है, चलो उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं हाउसिस। हाउसिस की अगर गल करिए तो हाउसिस इन्हों के ज़्यादातर 2 स्टोरी बिल्डिंग सीगे एक दे उपर जिहड़ी दूसरी सीगी। ठीक है जी, तो ये मतलब जिहड़े कि अच्छे तरीके दे नाल है जिहड़ा बनाया गया सी। अगर आप ब्रिक की गल करिए अपने कल भी गल की सी किस तरीके दी ब्रिक्स ने जिहड़ियां इन्होंने हाउसिस दे विच यूज़ कीतियां सीगियां बर्न ब्रिक्स सीगियां जिहड़ियां यूज़ कीतियां सीगियां। प्रॉपर मैजरमेंट आप लेटर ऑन भी डिस्कस करांगे कि प्रॉपर मैजरमेंट ऑफ ब्रिक्स है जिहड़ी इन्होंने की कीतियां सीगियां यूज़ है कीतियां सी। तो ज़्यादातर जिहड़े हाउसिस उत्थे मिले हैगे ने वो 2 स्टोरी बिल्डिंग हैगे ने और इन्हां दे घर दी कोई भी जिहड़ी विंडो है वो स्ट्रीट दे बाहर है जिहड़ी ओपन नहीं हुई हैगी। मतलब अजकल दे टाइम दे विच अपना ट्रेंड ये चीज़ बनी हुई है कि अपने रूम के बाहर एक बहुत वड्डी जिहड़ी विंडो है जिहड़ा कि आपां नूं स्ट्रीट व्यू देवे या सामने वाला व्यू देवे, पर उस टाइम दे विच यह चीज़ है जिहड़ी नहीं सीगी। कोई भी किसी भी घर की विंडो है जिहड़ी वो स्ट्रीट दे विच नहीं ओपन होंदी सी। मेन स्ट्रीट दे विच डोर भी आपां नूं नहीं मिले हैगे कि जिहड़े दरवाजे ने वो मेन जिहड़ी स्ट्रीट है वो ओपन होंदे सीगे तो नहीं होंदे सीगे मीनस। ठीक है जी, तो ये भी आपां नूं इन्फ्लुएंस निकलदा भी वो अपनी लाइफ नूं किद्दां प्राइवेट है जिहड़े रखदे सीगे तो किन्नी इस चीज़ की उन्हां नूं की सीगी उस टाइम दे विच जिहड़ी समझ हैगी सीगी। क्लीयर, हुण आपां बिल्डिंग मटीरियल की गल कर लैंदे तो जे हुण हाउसिस की गल की ओबीअसली हाउसिस बर्न ब्रिक है जिहड़ियां इन्हां ने यूज़ कीतियां सीगियां। इस तो पहला किते भी जिहड़े लास्ट फेसिस हैगे ने किते भी बर्न ब्रिक का जिहड़ा यूज़ है वो नहीं हैगा। तो मतलब अगर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बर्न ब्रिक दे पूछे जाते हैं कि कित्थे मिले ने तो आपां नूं इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच ही मिले ने। इस तो पहला पूरी स्टोन एज दे विच आपां नूं किते भी बर्न ब्रिक नहीं मिलियां। सन ड्राइड ब्रिक्स है जिहड़ियां जरूर मिलियां ने, बेक्ड ब्रिक्स आपां कह सकते हैं, पर ये वालियां जिहड़ियां बर्न ब्रिक है जिहड़ियां आपां नूं
नहीं मिलिया। हुण देखो ब्रिक्स तां इह यूज़ कीतियां ही सीगियां इन्हां ने, इस तो बिना बर्न ब्रिक तां सॉरी यूज़ कीतियां सी, इस तो बिना इन्हां दी जिहड़ियां ब्रिक्स सीगियां उहदी एक प्रॉपर मैजरमेंट सीगी, जिवें 1 2 4 इदां करके इन्हां दी की सी ब्रिक दी मतलब अपने पास मैजरमेंट सीगी। तां इत्थों आपां नूं इह चीज़ दे इन्फ्रेंस मिलदा है कि इन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा मैजरमेंट दी नॉलेज हैगी सी। हुण जे ब्रिक्स बन रही है, एक प्रॉपर नॉलेज हैगी है, तो किते ना किते कोई इंडस्ट्री है जिहड़ी ओह फ्लरिश कर रही होगी, जिहड़ी कि सारा कुछ की कर रही है, बना रही है। ठीक है जी, तो आप इत्थों ये समझ सकते हैं भी इन्हां नूं किन्ने ज़्यादा वेट्स की नॉलेज सीगी। ठीक है, वेट्स ही ऑबवियसली और मैजरमेंट की इन्हां नूं नॉलेज सीगी, तां ही इन्हां ने की कीतियां सीगियां सारियां ब्रिक्स आपां नूं ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ दे विच सही इसे डिमेंशन दे विच की होईयां ने रिसीव है जिहड़ियां होईयां ने। तां वेट्स एंड मैजर्स की बहुत अच्छी नॉलेज सीगी, तो ऑबवियसली आप इत्थों इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि कोई ना कोई इंडस्ट्री भी उस टाइम दे विच रही होगी। जे इन्नी अच्छी नॉलेज सी तां जिहड़ी इंडस्ट्री की कर रही सी, इन्हां ब्रिक्स नूं प्रोड्यूस है जिहड़ी कर रही सी। क्लीयर, चलो हुण आपां डिस्कस करते हैं जी अगे। तो ये नाल देखो अपना टाउन प्लैनिंग है जिहड़ा ओह की हुंदा है, खत्म हुंदा है। टाउन प्लैनिंग दे विच बेसिकली आपां यही सारियां चीज़ां नूं डिस्कस कर सकते हैं, या तुसीं अपने पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो कि इदां दा करके कितना मतलब अच्छा इन्हां दा टाउन प्लैनिंग सिस्टम सीगा। तां अज दे जिहड़े पीपल ने लास्ट दे विच आपां कनक्लूजन भी कर सकते हैं कि अज दे जिहड़े अपने गवर्नमेंट हैगी है या लोग ने उन्हां नूं की करना चाहिए, उन्हां दे टाउन प्लैनिंग तो सीखना चाहिए। इन्ने हज़ारां साल पहलां अपने विच इदां दा टाउन प्लैनिंग है जिहड़ा एग्जिस्ट करदा सीगा, तो उत्थों बहुत सारियां चीज़ां नूं आपां नूं सीखण दी जरूरत हैगी है। क्लीयर, तो ये सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखना। एक उन्हां दी डिवीजन किस तरीके दी सी सिटी दी, ठीक है, स्ट्रीट किस तरह दी सीगी, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके दा सी, हाउसिस किस तरीके दे सी, एंड जिहड़ी मटीरियल सीगा बिल्डिंग मटीरियल सीगा वो किस तरीके दा सी। तो इहदे नाल आपां ना ये टाउन प्लैनिंग वाला जिहड़ा हिस्सा है वो की हुंदा है जी, इहदे विचों खत्म है जिहड़ा हुंदा है। चलो हुण आपां ने ये चीज़ां भी समझ लियां सी, तो इस तरीके की जिहड़ी टाउन प्लैनिंग है आपां नूं उत्थे देखण नूं मिली है। हुण आपां जिहड़ा नैक्सट पढ़ना हैगा है वो आपां ने पढ़ना हैगा है कि इन्हां दी जिहड़ी सुसाइटी सीगी ओह किस तरीके दी सीगी। ठीक है, हुण सुसाइटी बारे भी आपां ने काफ़ी सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां पढ़नियां हैगियां ने। चलो तो सुसाइटी की आपां गल करिए तो एक अर्बन सुसाइटी सीगी, ये आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग दे विच ही देख लिया सी। ठीक है, आप मैच्योर हड़प्पा फेस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जी मैच्योर हड़प्पा फेस सीगी वो एक अर्बन सुसाइटी सीगी। ठीक है, चलो देखते हैं की लिखा होया। हड़प्पा सोसाइटी वॉज एन अर्बन सोसाइटी एंड कंप्राइज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स रूल्ड रिच पुअर। ठीक है, तो बेसिकली इत्थे 3 हिस्सों के डिवाइड है जिहड़ा कीता होया सोसाइटी नूं कि 3 हिस्से की सोसाइटी सीगे। एक तो अपने पास रूरल पीपल सीगे, एक रिच मर्चेंट सीगे और एक अपने पास पुअर लेबरर सीगे। जिहड़े कॉमन पीपल या लेबरर पीपल सीगे वो लोअर पार्ट ऑफ सिटी दे विच रहिंदे सीगे। ऑन द अदर हैंड रूरल क्लास और रिच मर्चेंट सीगे जिहड़े वो कित्थे रहिंदे सी, अपने सिटाडल एरिया दे विच रहिंदे सीगे। अगर आपां एरिया वाइज देखिए तो 2 हिस्सों दे विच ही लोग रहिंदे सीगे। ठीक है, एक अपर वाले हिस्से दे विच और एक लोअर वाले हिस्से दे विच। और बेसिकली सोसाइटी दे विच 3 टाइप के लोग ने जिहड़े या क्लास है एग्जिस्ट करती सी। रूल्ड क्लास होगी, अपने पास मर्चेंट क्लास होगी और तीसरी क्लास अपने पास जिहड़े कॉमन पीपल या लेबरर है जिहड़े सीगे। ठीक है, तो इहदे विच हुण देखो तो मतलब की है, इत्थों आपां ये इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि जिहड़े इह स्किल नूं किन्नी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है जिहड़ी दित्ती जांदी सी। हुण जे कोई लेबरर हैगा उहदे नाल उस अकॉर्डिंग दा सीगा, जे कोई जिहड़ा मर्चेंट है जिहदे विच अच्छी स्किल सीगी तो उहनूं अलग क्लास दे विच जिहड़ा रखिया जांदा सी। ठीक है, तो आपां कह सकते हैं सोशल इनइक्वैलिटीज़ नो डाउट हैगियां सीगियां, पर किते ना किते कुछ पॉजिटिव चीज़ां भी की कर रही सी, एग्जिस्ट है जिहड़ियां कर रही सी। किद्दां एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिहड़ी बहुत वैल प्लैंड सीगी। ठीक है, कि रूल्ड क्लास होगी, फिर मर्चेंट क्लास होगी, फिर अपने पास लेबर क्लास होगी। तो इदां ही बेसिकली अपना जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हुंदा है कि हायर डेजिग्नेशन उस तो लोअर डेजिग्नेशन और मोस्ट लोअर जिहड़ी डेजिग्नेशन। ठीक है, तो इदां करके एक बहुत अच्छा जिहड़ा सिस्टम सीगा वो इत्थे हैगा सीगा। अगर क्लॉथिंग की गल करिए तो जिहड़ियां लोग सीगे गारमेंट्स वगैरह भी वेयर करते सीगे। ठीक है, आपां देखांगे गारमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वूल। इस तो बिना सॉरी आपां ऑर्नामेंट्स की भी गल करिए तो ऑर्नामेंट्स भी वेयर करते सीगे। तो हड़प्पा पीपल जनरली वॉर गारमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वूल अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, जिस तरीके का क्लाइमेट होएगा, अगर ऑबवियसली वार्म क्लाइमेट होएगा तो कॉटन पहनणगे, और अगर अपने पास जिहड़ा ठंडा क्लाइमेट होएगा तो उस टाइम दे विच ओह वूल है जिहड़ी वेयर कर लैंदे सी।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲੌਥ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੀਵਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਾਟਨ ਵੂਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਲੌਥਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਔਰ ਵੂਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲੌਥਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੋਇਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੱਪਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਔਰ ਬਾਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਔਰ ਬਾਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਟ ਬਾਰਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਰੰਗਪੁਰ ਔਰ ਸਰਕੋਟੜਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਈਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਕੈਲਟਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਲਸਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਮੇजेस ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਦਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨੀਮਲ, ਬੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਟੋਏ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਸ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਲਿਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲਿੰਗ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਲਿਕ ਐਂਡ ਯੋਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਿਲੀਵਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी विमेन ਨੂੰ फॉर एग्जाम्पल कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम हैगी है कि वो रीप्रोडक्शन नहीं कर पा रही, तो हो सकता उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਡੀਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿੰਗ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਕੀ अपनी फीमेल। क्लीयर। तो उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिंदे सीगे। तो इस तो बिना ये तो आपको ये पता चलता है कि यह एक सैकुलर सोसाइटी सीगी, है ना। कोई भी कोई किसी भी धर्म को फेवर नहीं कर रहा सीगा, कोई पर्टिकुलर ये नहीं सीगा भी एक ही रिलीजन को यह सोसाइटी है जी बिलोंग करती सी। सैकुलर सोसाइटी सी, कोई किसी की पूजा कर रहा, कोई किसी की पूजा कर रहा। तो इदां दे आपां नूं एविडेंस है जिहड़े मिले हैगे ने। तो इस तो बिना आपां नूं इत्थे किसी भी तरीके का कोई भी जिहड़ा टैंपल है वह नहीं मिलिया हैगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन लास्ट यूपीएससी के कुछ मैंने एग्जैक्ट याद नहीं हैगा, कुछ ईयर्स पहला ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बना के पूछा गया सीगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच की हैगा जी टैंपल है जिहड़ा एग्जिस्ट करते सी। तो नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच किसी भी तरीके का टैंपल है जिहड़ा एग्जिस्ट है नहीं करता सीगा। ठीक है जी। अच्छा, और उस तो बिना और रिलीजन हैव बीन फाउंड अनलाइक इन अदर कंटैंपरेरी सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है। तो मतलब इत्थे कोई पर्टिकुलर रिलीजन नूं ये फॉलो नहीं करते सीगे, तो इदां करके वर्शिप करते सीगे। पर ऑन द अदर साइड अगर आप इन्हां दी कंटैंपरेरी सिविलाइजेशन की गल करिए, चाहे आप मैसोपोटामिया की गल कर रहे हैं या अदर अपनी इजिप्टन चाइनीज सिविलाइजेशन की आप गल की है, ऊपर आपने देखिया भी नहीं कुछ कंटैंपरेरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करदियां सीगियां जिन्हां दे नाल ये अपना ट्रेड है जिहड़ा करदे सी। उन्हां दा अपना की सीगा, उन्हां सिविलाइजेशन दे विच एक आपां नूं पर्टिकुलर रिलीजन दे एविडेंस है जिहड़े मिले ने। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली की सीगा, एक सैकुलर स्टेट सीगा, ठीक है, या सैकुलर सोसाइटी सीगी। उस टाइम दे विच किसी पर्टिकुलर रिलीजन नूं ये फॉलो नहीं करते सीगे। इत्थे टैंपल की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं सी। हाँ, कुछ रिचुअल जरूर एग्जिस्ट करते सी, जिवें आपां देखिया ग्रेट बाथ ऑफ मोहिंजोदड़ो, ठीक है, जिथे वो जस्ट लाइक एक स्विमिंग पूल की तरीके नाल ही मतलब वो एरिया है इदां दा सीगा। बट जिहदा कोई एक स्पैसीफिक परपस होएगा, जिवें अज दे टाइम दे विच आपां गंगा नूं होली रिवर मनदे आ, ठीक है, तो लोग ने जिहड़े गंगा किनारे आ जिहड़ा बाथ लैंदे आ, ठीक है, अपने पाप है जिहड़े धोंदे आ गंगा दे विच। तो उस तरीके दे नाल जिहड़ा ग्रेट बाथ सीगा उहदा एक स्पैसीफिक की रहा होएगा, रिलीजियस परपस तो मीनिंग है रहा होएगा। इदां दा अपने हिस्टोरीयंस ने की कीता है, डीकनस्ट्रक्ट है या डिस्कवर है कीता हैगा जी। ठीक है जी। चलो हुण आपां अगे देखते हैगे आ कि अगे होर किहड़ी चीज़ हैगी है। देखो आपां इन्हां दी सोसाइटी बारे जिहड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने सोसाइटी की डिवीजन भी पढ़ ली है, आपने इन्हां दे क्लॉथिंग पैटर्न भी डिस्कस कर लिए हैगे ने, फूड हैबिट्स किस तरीके दीयां हैगियां ने, रिलीजन किस तरीके का हैगा है। तो इदां करके थोड़ा सा तुहानूं डाटा है डिवर्सीफाई करना आना चाहिए कि आपने टाउन प्लैनिंग दे विच किहड़ियां चीज़ां रखनियां ने, सोसाइटी च किहड़ियां चीज़ां पढ़नियां ने एंड अदर थिंग्स। ठीक है जी। हुण आपां गल करते हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जिद्दां ही आपां ने डिस्कस पहलां कीता सीगा कि जिहड़ी इन्ना यह जिहड़ा पीरीयड हैगा यह प्रोटो हिस्टरी दा पीरीयड हैगा, जिहदे विच उन्हां पास ये तां नहीं सी कि वो स्क्रिप्ट उन्हां नूं नहीं पता सी। तां अर्ली मैन न्यूलिथिक पीरीयड दे विच सॉरी अपने जिहड़े तीनों चारों फेसिस हैगे ने स्टोन एज दे, उन्हां दे विच अर्ली मैन नूं जिहड़ी किसी भी तरीके की कोई भी स्क्रिप्ट है जिहड़ी नहीं पता सी। उन्हां ने जिहड़ी अपनी लाइफ बारे आपां नूं दस्सिया या आपां नूं पता लग्या है, उन्हां दी कुछ आर्कीलॉजिकल सोर्सिस तो आपां नूं पता लग्या हैगा। जिवें अगर आपां स्टोन एज की गल करिए तो स्टोन एज दे विच बहुत सारिया चीज़ां ने, जिवें स्टोन आपने कल भी डिस्कस किया सीगा कि आपने स्टोनस तो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के विच की कीता है, क्लासीफाई किया है। पेंटिंग्स तो आपने उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के विच क्लासीफाई किया है एंड अदर थिंग्स। तो क्योंकि उन्होंने कोले कोई भी किसी भी तरीके की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं सी, पर इत्थे ये लोग सीगे इन्हों स्क्रिप्टिंग या रिटन स्क्रिप्ट या जिहड़ी उन्हों दी नॉलेज सीगी। हाँ, वो अपनी वो हैगी है कि अज आपां उस जिहड़ी स्क्रिप्ट है उसनूं डिसाइफर है हजे तक आपां नहीं कर पाए हैगे। तां जिहड़ी इन्हां दी बेसिकली जिहड़ी स्क्रिप्ट सीगी वो एक पिक्चर ग्राफिक स्क्रिप्ट सीगी। ठीक है, भी पिक्चर मतलब एक सिंबॉलिक फॉर्म च कह लो या लोगो फॉर्म दे विच कह लो, इस तरीके की इन्हां दी स्क्रिप्ट हुंदी सी, जिहदे विच जिवें साइंस वगैरह यूज़ करते सीगे, जिवें बर्ड हो गया, फिश हो गया, उन्होंने रिपीट करी जाना, कुछ ह्यूमनस दे साइन हो गए। तो इस फॉर्म दे विच इन्हां दी एक पिक्चर ग्राफिक की सीगी अपने पास स्क्रिप्ट है जिहड़ी एग्जिस्ट करती सी। इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना है।
देखो ये एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਸਟਰਫੋਰਡਨ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ इधरों राइट टू लैफ्ट अगली लाइन दे विच फिर लैफ्ट टू राइट ऐदा करके मतलब एक एक लाइन छड्ड के ये पैटर्न नूं की करदे सीगे ऑल्टरनेट लाइन्स दे विच फॉलो है जिहड़ा सेम पैटर्न करदे सीगे तां ये भी चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी हैगी है क्लीयर। अच्छा हुण रीसेंट थ्योरीज देखो ये थ्योरीज ही हैगियां ने क्योंकि आपां हजे स्क्रिप्ट बारे इन्ना कुछ आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए तो कुछ अपने पास ज़्यादा डाटा नहीं हैगा तो अपने पास यही है कि इन्हां दी जिहड़ी स्क्रिप्ट सीगी बहुत जगह के उपर आपां नूं देखण नूं मिलिया किते काफ़ी जगह ते आपां नूं साइन बोर्ड मिलिया हैगा सील्स के उपर आपां नूं इन्हां दी स्क्रिप्ट है जिहड़ी देखण नूं मिली हैगी है बट आपां हजे तक उस स्क्रिप्ट नूं डिसाइफर है जिहड़ा नहीं कर पाए। तो स्क्रिप्ट किस तरीके दी सी अगर आपां ये चीज़ समझनी होवे तो आपां नूं इन्ना पता होना चाहिए कि जिहड़ी स्क्रिप्ट है इन्हां दी पिक्चर टाइप स्क्रिप्ट सीगी सिंबल्स सीगे सिंबॉलिक यूज़ करते सीगे सिंबल्स नूं ये और इस तो बिना ये राइट टू लैफ्ट दैन लैफ्ट टू राइट ऐदा करके इस मैथड के नाल ये अपनी राइटिंग है जिहड़ी हिस्टोरियंस के द्वारा डिस्कवर किया गया है कि इस तरीके की राइटिंग के द्वारा ये करते सीगे इस तरीके की राइटिंग सॉरी करते सीगे और बेसिकली किस तरीके के जिहड़े साइंस ने यूज़ किए हैं वो भी आपां ने देख लिया कि बर्ड्स हो गए फिश हो गए ऐदा के रिपीटेड सिंबल्स ने आपां नूं मिले हैगे ने जिन्हां दा आपां मतलब है जिहड़ा हुण तक नहीं समझ पाए इसीलिए आपां इस हिस्से नूं इस पार्ट ऑफ हिस्टरी नूं किहदे विच रखिया है की कहने आ प्रोटो हिस्टरी है जिहड़ी कहने हैं कि स्क्रिप्ट तो अवेलेबल हैगी है बट हजे तक आपां उसनूं डिसाइफर या कोई फाइनली कनक्लूड है जिहड़ा नहीं कर पाए हैगे। पर ऑन द अदर साइड अगर आपां देखिए जिहड़ियां अपनी कंटैंपररी सिविलाइजेशन उस टाइम दे विच एग्जिस्ट कर रही सीगियां तो उन्हां दी स्क्रिप्ट नूं आपां ने डिसाइफर कर लिया है ठीक है जी। तो उत्थों आपां नूं एक चीज़ ये थोड़ी जी समझ आई हैगी है कि यह जिहड़े हड़प्पन पीपल सी यह अपने आप नूं मैलूहा बोलदे सीगे ठीक है। हुण ये चीज़ आपां नूं कित्थों पता लगी है ये आपां नूं जिहड़ियां कंटैंपररी सिविलाइजेशन सीगियां उन्हां दी राइटिंग दे विच काफ़ी जगह के उपर मैलूहा वर्ड आपां नूं मिलिया है और इत्थे भी आपां नूं समझ लग्या है। तो इस चीज़ तो अपने हिस्टोरियंस ने काफ़ी सारे होर फैक्ट्स नूं ध्यान दे विच रखदे हुए उन्होंने ये चीज़ नूं डिस्कवर किया है कि जिहड़े हड़प्पन पीपल सीगे वो अपने आप नूं मैलूहा करके की है बुलाते हैं जिहड़े होणगे ठीक है जी। हुण आपां बिलीव्स की गल कर लैंदे आं ओबवियसली यह ईवल फोर्सिस दे विच उस टाइम दे विच बिलीव है जिहड़े करदे सीगे गोश्त वगैरह दे विच देयर वाज ट्रू अबाउट मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी क्योंकि कई जगह ते आपां नूं मैजिक वगैरह दे भी एविडेंस है जिहड़े मिले हैगे ने तां करके आपां इन्हां दी बिलीव्स नूं कहीए तां इह जिवें ब्लैक मैजिक हो गया तां इस तो बिना गोश्त वगैरह ऐदां दीयां चीज़ां दे विच बिलीव करदे सीगे। और एक बिलीव्स दे विच आपां होर भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये नैक्सट वर्ड दे विच भी बिलीव करदे सी क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा पैटर्न सीगा आपां ने या इत्थे आपां हजे पढ़ांगे जिहड़े इन्हां दे बरीयल्स मिले ने बेसिकली बरीयल्स दे विच इह अपने डैड वंस दे नाल काफ़ी सारा मटीरियल है जिहड़ा नाल है दफन करदे सीगे जितों ये पता लगदा कि इन्हां दा बिलीफ ये सीगा कि यह नैक्सट वर्ड दे विच इह जिहड़ा मटीरियल हैगा यह उस परसन दी अगे जाके की करेगा उहदे नाल जाएगा। सिमिलर चीज़ आपां ने न्यूलिथिक दे विच भी देखी सी उही ट्रेंड नूं फॉलो करते हुए और इस तो बिना क्योंकि इत्थे ज्वैलरी बीड्स एक्सैट्रा बहुत सारिया चीज़ां आपां नूं देखण नूं मिलियां हैगियां ने तां अपने जिहड़े डियर वन सीगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां प्रैशियस चीज़ां सीगियां नाल है जिहड़ियां उहदे दफन कीतियां जांदियां सीगियां जिवें गोल्ड हो गया गोल्ड चेन हो गया या होर काफ़ी सारे बीड्स मेकिंग नैकलेस हो गए तो ये सारियां चीज़ां वो पा के ही की करते सी अपने डियर वंस नूं बरी है जिहड़ा करते सी। तां इसीलिए इस तो आपां ये भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यह नैक्सट जिहड़ा वर्ड है उहदे विच भी की करते सीगे वर्ल्ड दे विच बिलीव है जिहड़ा करते सी। इस तो बिना ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी सारे एविडेंस आपां नूं मिले हैगे हैं ठीक है जिवें राजस्थान दे विच मिले हैगे हैं तो काली बंगन ठीक है जितों अपन ब्लैक बैंगल्स वगैरह मिले तो अपन उत्थे इन्फ्लुएंस कढ़िया कि इत्थे ब्लैक मैजिक वगैरह हुंदा होएगा तो ब्लैक मैजिक हो गया गोश्त हो गया या फिर नैक्सट वर्ल्ड दियां ऐदां दे बिलीव्स इन्हां दे विच की करदे सीगे एग्जिस्ट है जिहड़े करदे हैगे सी ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि बिलीव्स उन्हां दे की सीगे किस तरीके दे हैगे सी। उस तो बाद बरीयल प्रैक्टिसिस दे विच इह नॉर्थ टू साउथ बॉडी नूं डायरैक्शन दे विच रखदे सीगे एंड वर और अगे की करदे सीगे अगे देख लैंदे आ
और नाल कंपेंड की करते सी कुछ फूड हो गया, पॉटरी हो गया, ज्वैलरी जिदा अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ग्रेव यार्ड विद इन द सैटलमेंट दे प्रैक्टिस 3 टाइप ऑफ बरियल। ठीक है जी, हुण ये तो चीज़ अपने समझ ली, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि अपने ਜਿਹੜੇ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਅਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਫਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਬਰੀਅਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਰੀਅਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਜਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਬਰੀਅਲ। ठीक है भी कंप्लीटली बॉडी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬॉडी ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡ ਬॉडी ਨੂੰ ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਸ ਨੂੰ ਬॉडी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬॉडी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਆਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਰੀਅਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬॉडी ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉडी ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਅਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬॉडी ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਐਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਬਿਲੀਫਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲੀਫਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀਗੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹਰੱਪਾ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ठीक है जी। तो एग्रेरियन सोसाइटी सीगी जिहदे विच वीट हो गया, बारले हो गया, राइस राइस आपां नूं बेसिकली रंगपुर दे विचों ही मिले हैगे ने, डेट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन फस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे कॉटन नूं प्रोड्यूस करन वाले जिहड़े सब तो पहले हैगे ने वो हैगे ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पर पिछे भी आपां नूं कॉटन दे जिहड़े एविडेंस आ मिले ने, बट एक्चुअल जो कॉटन हैगी है उन्होंने डेवलप करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पीपल हैगे ने। इत्थों आपां नूं एविडेंस है जिहड़े मिले हैगे ने। तो ये चीज़ याद रखियो, अगर वन लाइनर दे विच क्वेश्चन आंदा है कि जिहड़ी कॉटन नूं डेवलप करने वाली सब तो पहली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती सी वो किस टाइम की सी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही कॉटन नूं एक्चुअल दे विच सही तरीके नाल डेवलप करना की कीता सीगा, स्टार्ट है जिहड़ा कीता सीगा। क्लीयर। अच्छा हुण एग्रीकल्चर दे विच आपां उन्हां दे थोड़ा जिहा सीजन बारे देख लैंदे आ, ठीक है जी। तो उन्हां दा जिहड़ा सोइंग सीजन सीगा वो नवंबर सीगा, मतलब वो नवंबर दे विच फसल नूं बीजदे सीगे, और जिहड़ा हारवेस्ट सीजन सीगा वो अप्रैल सीगा। अप्रैल दे विच वो बेसिकली की कर लैंदे सी, फसल नूं कट लैंदे सी। तो एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर साइकल सीगा जिन्हों वो की करदे सीगे, फॉलो है जिहड़ा करदे सी। पर इहदा मतलब देखो हुण जिहड़ा ये अपना साइकल हैगा, अगर आपां वैसे डिस्कस करिए तो ये अपना दो तरीके दीयां क्रॉप्स एग्जिस्ट करदियां ने, एक हैगियां ने अपनियां खरीफ्स और दूसरियां हैगियां ने अपनियां रबी क्रॉप्स। तो दो क्रॉप्स हैगियां ने, तो जे यही सीजन नूं आपां देखिए तो यह रबी क्रॉप्स नूं की करदा है, बिलोंग करदा है। तो इहदा मतलब ये है कि खरीफ क्रॉप्स नूं नहीं मतलब कल्टीवेट करदे सी, तो नहीं इहो जिहा कुछ नहीं है। ये रबी एंड खरीफ है जिहड़ा दोनों टाइप दीयां क्रॉप्स नूं की करदे सी, कल्टीवेट करदे सी। पर जिहड़ा इन्हां दा मेन सीजन सीगा एग्रीकल्चर दा वो किहड़ा सीजन सीगा, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। ये चीज़ तुसीं याद रखनी हैगी है। तो यह रबी एंड खरीफ दोनों टाइप दियां क्रॉप्स नूं यूज़ है जिहड़ा या कल्टीवेट है जिहड़ा करदे सीगे। हुण ऑबवियसली रिवर तो पानी भी चाहिदा होएगा, रिवर के सराउंडिंग आप रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो रिवर का पानी किसी ना किसी तरीके दे नाल अपने जिहड़े खेत हैगे ने या जिथे आप क्रॉप नूं प्रोड्यूस कर रहे हैं उत्थे उत्थे तक पहुँचाना होएगा। तो बहुत जगह के उपर आपां नूं बहुत अच्छा कह सकते हैं कैनाल सिस्टम है जिहड़ा वो भी है मिलिया हैगा है। तो इट शोज़ एडवांसमेंट एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी वुडन प्लोशेयर मतलब कि एक आपां नूं लकड़ का हल मिलिया हैगा। तो हुण तक आपां ने की देखिया है, तो अगर प्लो की गल करिए इस तो पहला आपां नूं किते भी नहीं हल है दे एविडेंस है जिहड़े नहीं मिले। तो इत्थों आपां नूं ये इन्फ्रेंस पता लगता है, इत्थों इन्फ्रेंस आपां कढ सकते हैं कि किन्ने ज़्यादा एडवांस पीपल सीगे। इन्हां नूं पता सीगा कि इन्हां नूं की करना पेगा, पहला जिहड़ा खेत है उहनूं की करना पेगा, मतलब लाइक उहदी मिट्टी है जिहड़ी उसनूं कढनी पेगी सॉइल नूं, ठीक है। तो उस तो बाद उहदे विच अपने जिहड़े सीड्स हैगे ने उसनूं प्लांट करना पेगा। तो आपां नूं प्लोवेयर दे की मिले ने जी, इत्थे प्लोशेयर दे सॉरी की मिले ने हल दे बेसिकली एविडेंस है जिहड़े मिले हैगे ने। ये चीज़ नूं की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। वैल इरीगेशन ऑबवियसली फसल जे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इरीगेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए है। डैम्स भी आपां नूं काफ़ी जगह ते मिले ने। इरीगेशन कैनाल्स कित्थे मिली है जी आपां नूं कैनाल्स, ढोलावीरा का जिहड़ा कैनाल सिस्टम है इन्ना बैटर तो नहीं है, एक रफ जिहा कैनाल सिस्टम आपां ने देखिया हैगा जिहड़े अपने हिस्टोरीयंस ने डिस्कवर किया है कि एक पर्टिकुलर एरिया दे विचों इन्हां ने मतलब कुछ लोअर पार्ट डिग करके अपनी सरफेस नूं लोअर पार्ट दे विच डिग करके उत्थों दे की बनाए हुए ने एक पानी का जरिया है जिहड़ा अपने जिहड़े पर्टिकुलर खेत ने उत्थों तक पहुँचण का बनाया हुआ है। तो अगर तुहानूं पुछया जांदा है कि जिहड़े इरीगेशन कैनाल के एविडेंस कित्थों मिले ने तो आपां ढोलावीरा लिख सकते हैं कि ढोलावीरा तो आपां नूं कैनाल के जिहड़े एविडेंस ने मिले हैगे ने। तो ये चीज़ां जिहड़ियां मेन हैगियां ने तुहानूं याद रखनियां पैणगियां। क्लीयर। चलो हुण एग्रीकल्चर बारे आपां ने गल कर ली। तो इस तो बिना देखो आपां देखांगे कि इन्हां नूं बहुत सारियां होर चीज़ां भी आंदियां सीगियां। इनू आपां ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर एंड टिन नूं इकट्ठा करके एक अलॉय बनाया इन्हां ने, उस ब्रॉन्ज नूं मल्टीपल जगह के उपर यूज़ करते होणगे। हुण ये मतलब इत्थों ये इन्फ्रेंस भी निकलदा है कि जिहड़ी ये एग्रेरियन सोसाइटी सीगी, ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी सीगी, ये सैल्फ सफिशिएंट सीगी। आपां नूं कई जगह के उपर ग्रीनरीज मिलियां ने, ठीक है। आपां देखिया सीगा कि सिटाडल दे विच ये अपनी ग्रीनरीज फूड वगैरह नूं स्टोर करके रखते सीगे। काफ़ी 6 ग्रीनरीज आपां नूं एक लाइन दे विच भी मिलियां ने, आपां अगे जाके लेटर ऑन पढ़ांगे। तो ये तो ये चीज़ पता लगता है कि यह सैल्फ सफिशिएंट हो चुके सी, इन्हां कोले इन्ना ज़्यादा फूड हैगा सीगा कि अगर ये एग्रीकल्चर वाली साइड बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे के मतलब सारे परसन एग्रीकल्चर दे विच ना लग के अपना दूसरे काम की कर सकते हैं,
कर सकते हैं बेसिकली। तो मतलब ये एक सैल्फ सफिशिएंट सोसाइटी सीगी जिन्हां ने एग्रीकल्चर दे विच अपनी पूर्ति कर ली सीगी, तां करके इन्हां ने दूसरी साइड कुछ होर इंडस्ट्रीज़ दे विच ध्यान देना की कर लिया सीगा, स्टार्ट है जिहड़ा कर लिया सी। वो किहड़ियां-किहड़ियां इंडस्ट्रीज़ ने या किहड़ियां-किहड़ियां होर चीज़ां जिहड़ियां ये करदे सीगे, किहड़े-किहड़े काम करदे सी, आपां लेटर ऑन डिस्कस करांगे। बट इत्थे आपां नूं समझना जरूरी है कि यह सैल्फ सफिशिएंट हो चुके सी एग्रीकल्चर, क्योंकि कोई भी सोसाइटी अगर एग्रीकल्चर दे विच सैल्फ सफिशिएंट होएगी तां ही वो अगे डेवलप है जिहड़ा हो पाएगी। कोई भी अपने नेशन हैगा अज दे टाइम दे विच भी, चाहे आपां अमेरिका डेवलप्ड कंट्री हैगी है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री हैगी है, तो किसी टाइम के विच जिहड़ा अमेरिका होएगा वो सब तो पहला एग्रेरियन सोसाइटी ही होएगा या एग्रेरियन इकोनॉमी ही होएगा। तो सब तो पहला किसी भी कंट्री का पहला पर्पस यही होंदा है कि वह एग्रीकल्चर दे विच सैल्फ सफिशिएंट है जिहड़ा हो जाए। ऐदा ही आपां ने अपने फस्ट 5 ईयर प्लान दे विच भी अगर आपां ने डिस्कस पढ़िया है तुसीं होएगा तो उहदे विच यही चीज़ दसी गई हैगी है कि पहला जिहड़ा 5 ईयर प्लान सीगा उहदा बेसिक पर्पस एग्रीकल्चर सीगा, ठीक है, कि एग्रीकल्चर नूं आपां ने सैल्फ सफिशिएंट है जिहड़ा बनाना। फिर किद्दां ग्रीन एवोल्यूशन आया सी और किद्दां इंडिया भी सैल्फ सफिशिएंट हो गया सी। तो कोई भी कंट्री है, चाहे कोई भी सोसाइटी है, पुराने टाइम की अज दे टाइम की है, तो सब तो पहला किसी भी इंसान नूं या किसी भी कंट्री की देश की सरकार नूं सॉरी अपने जिहड़ी जनता हैगी है उहदी मतलब उहदे खाने की फिक्र है जिहड़ी हुंदी है। जदों उस साइड तो सैल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं कि इन्ना खाना अपने पास अवेलेबल हैगा कि हुण आपां इस साइड वाल साइड अगर घट भी फोकस कर लीए ना भी फोकस करिए, कोई दूसरा बंदा इस साइड वाल फोकस कर ले तो आप कोई होर काम है जिहड़ा कर सकते हैं। क्लीयर, ये आपने थोड़ा जिहा पहला भी डिस्कस है जिहड़ा कर लिया सी। तो ये सारिया चीज़ों भी तुसीं की रखना है, ध्यान है रखना है। देखो इन्नी चीज़ है जिहड़ी समझाउण दा मेरा पर्पस यही है भी तुसीं अपने मेन्स आंसर राइटिंग दे विच काफ़ी सारिया चीज़ां लिख सकते हैगे हो, और जे लॉजिकल या कंसैप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता हैगा पेपर दे विच तां तुसीं की कर सकते हो, उसनूं हैंडल है जिहड़ा कर सकते हैगे। चलो उस तो बाद मैनुफैक्चरिंग, तो देखो जी हुण क्योंकि सैल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं तो मैनुफैक्चरिंग वाली साइड है इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट है कर दिता हैगा। टैराकोटा फिगर्स ने जिहड़ियां आपां नूं मिलियां हैगियां ने काफ़ी सारियां अलग अलग तरह दियां। इस तो बिना आपां नूं बैंगल्स हो गया, सील्स हो गया, बीड मेकिंग फैक्ट्री आपां नूं मिली हैगी है जी, ज्वैलरी हो गया, गोल्ड सिल्वर, ये सारियां प्रैशियस स्टोन्स हो गया, ये सारियां चीज़ां आपां नूं की है इन्हां नूं देखण नूं मिलियां ने। मतलब किद्दां ये अदर एक्टिविटीज़ दे विच की करन लगे सी जिहड़े परफॉर्म है जिहड़े कर रहे सी। टैराकोटा बेसिकली टैराकोटा तो जिहड़े अपने टॉयज सीगे या फिगर सीगियां उन्हां तो अपने हिस्टोरीयंस ने बहुत सारा डाटा है जिहड़ा ड्राइव किया है। आपां उत्थों पता लगे कि हाँ इन्हां नूं किहड़े-किहड़े मतलब जिद्दां आपां ने देखिया कि मदर गॉडेस दे आपां नूं टैराकोटा इमेज मिले ने, पशुपति हो गया, आपां नूं प्लोशियर मिलिया है, ठीक है जी, और इस तो बिना होर बहुत सारिया बुलक कार्ट मिले है जी एक आपां नूं। तो उत्थों इन्हां दी एक्चुअल दी सोसाइटी किस तरीके दी सी, किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां सोसाइटी दे विच एग्जिस्ट करदियां सी, उत्थों आपां ने सारियां चीज़ां नूं समझिया हैगा है। क्योंकि ऑबवियसली कोई परसन है जिहड़ा कोई टॉय उसे चीज़ दा बनाएगा जो प्रेजेंट टाइम दे विच एग्जिस्ट करदी होएगी। तो अज भी टॉय उसे चीज़ दे बनाए जाते हैं जो प्रेजेंट टाइम च एग्जिस्ट करदियां होणगियां उहदियां दे चीज़ां नाल, ठीक है जी ना। टैराकोटा जिहड़े फिगर्स हैगे ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी हिस्टरी नूं डिकोड करन दे विच। तां अपना एक प्लस पॉइंट होर नवा ऐड हो गया अपने सैकेंड लैक्चर दे विच, ठीक है जी। तो यह भी चीज़ की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखनी हैगी है। तो ऑबवियसली मैटलर्जी की भी इन्हां नूं नॉलेज सीगी, इन्हां ये अलॉय है जिहड़ा प्रोड्यूस कर लेंदे सीगे। तो अपने पास ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिहड़ा आ गया हैगा। तो टैराकोटा आर्टिकल शो दैट यूज बाय द कॉमन पीपल। तो ऑबवियसली जिवें आपां ने गल कर ही लई है कि टैराकोटा फिगर्स दे विच काफ़ी सारिया चीज़ां आपां नूं मिलियां हैगियां ने, इमेजेस मिलियां ने जितों आपां नूं इन्हां दी सोसाइटी बारे उस टाइम दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां एग्जिस्ट करदियां सीगियां उहदे बारे आपां नूं पता है जिहड़ा चलिया हैगा। बाकी गोल्ड्स क्योंकि आपां नूं काफ़ी सारियां आपां नूं देखांगे आपां ज्वैलरी मिली हैगी है गोल्ड दी, सिल्वर दी, ये सारियां चीज़ां। तो ऑबवियसली बहुत अच्छे की सीगे, गोल्ड स्मिथ भी सीगे, ब्रॉन्ज स्मिथ भी सीगे, ब्रिक मेकर भी सीगे। ये मोर कॉपर आर्टिफैक्ट्स डोंट मीन टैक्नोलॉजी बैकवर्डनेस बट इट वाज द कल्चरल प्रैफरेंस। नो डाउट इनू इन्ना आपां नूं डिटेल दे विच जाण दी जरूरत नहीं हैगी। इत्थों आपां ने अपना एक्चुअल इन्फ्रेंस है जिहड़ा वो की है कढ लिया हैगा। क्लीयर, चलो हुण अगे देखते हैं। हुण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है कि जिहड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल सीगे नो डाउट उन्होंने ब्रॉन्ज का पता सी, नो डाउट उन्होंने कॉपर का पता सी, उन्होंने गोल्ड का भी पता सी, उन्होंने सिल्वर का भी पता सी, पर उन्होंने आयरन का नहीं पता सी। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग दे विच भी तुहानूं समझाई सीगी कि एक आयरन इदां दी मैटल हैगी आ जिहदां दी नॉलेज है जिहड़ी किनूं नहीं सीगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं नहीं सी। वैदिक एरा दे विच जाके आयरन है जिहड़ा डिस्कवर होया सी। तो उही आपां ने
देखा सीगा कि उसे आयरन तो अगे जिमें जनपद्स बने सी, किद्दां इंडस्ट्री फ्लरिश की, या आप डिस्कस करांगे, सॉरी जनपद्स बन गए, जनपद्स तो महाजनपद्स जिहड़े बन गए सीगे, ठीक है। किद्दां किंग बन गए सीगे, राजे सी, किंगडम्स बन गई सीगियां, तां राजियां कोल ऑबवियसली हथियार भी होने चाहिए ने, तां जिहड़े वो आयरन है मैटल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी दे विच एवोल्यूशन का, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है, इन्हां नूं की नहीं पता सी, इन्हां नूं आयरन है जिहड़ा नहीं पता सी। बाकी मैटलर्जी आपां ने देख लिया, सिल्वर भी आपां ने देख लिया, गोल्ड भी आपां ने देख लिया, तो ये सारियां चीज़ां दी इन्हां नूं की सीगी मैटल्स की नॉलेज सीगी, और मैटलर्जी भी ये जानते हैगे सीगे। क्लीयर, चलो हुण आपां नैक्सट देखते हैं कि नैक्सट की कह रहा है। नैक्सट हैगा अपने पास पॉटरी। तो पॉटरी किस तरीके की सी जी, रैड वेयर पॉटरी है जी इत्थे यूज़ होंदी सी, रैड एंड ब्लैक, ठीक है, रैड के उपर ब्लैक टाइप का कुछ पेंट किया होया, और ये हाईली पॉलिश्ड पॉटरी है जी इन्हां दी हुंदी सीगी, ठीक है जी। ये चीज़ नूं ध्यान रखना। तो हाईली पॉलिश्ड टाइप ऑफ पॉटरी है जी आपां नूं इत्थे मिली हैगी है, और इत्थे आपां नूं पॉटर्स का जिहड़ा व्हील है उहदे भी एविडेंस है जिहड़े मिले हैगे आ। तो आपां नूं इत्थों ये भी इन्फ्रेंस निकलदा कि उस व्हील की इन्हां नूं की सीगी जानकारी हैगी सीगी, ठीक है जी। ग्लेज्ड ग्लेज्ड पॉटरी ऑबवियसली बहुत ज़्यादा शाइनेबल पॉटरी सीगी, तो इत्थों पता लगता कि ये किन्ने ज़्यादा मतलब इन्हां दे विच जिहड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट सी वो भी कितना ज़्यादा इस टाइम दे इस पीरीयड दे विच जिहड़ा फ्लरिश सीगा। पॉटरी दी ऑबवियसली पिछे टाइम तो ही चलदा आ रहा, पॉटरी का बेसिक पर्पज स्टोरेज सीगा, ठीक है जी। हाईली पॉलिश्ड पॉटरी सीगी, जिहड़े इन्हां दे डिशेस सीगे मीनस बर्तन वगैरह सीगे वो भी काफ़ी हाईली पॉलिश्ड होंदे सीगे। मतलब ऑन द अगर आप अदर हैंड जिहड़ा आप इस तो पहलां वालियां एजिस नूं देखिए, उत्थे इन्नी हाईली पॉलिश्ड पॉटरी है जिहड़ी आपां नूं नहीं मिली है। ईवन कि पॉटरी का एवोल्यूशन उत्थों ही हो गया सीगा, ठीक है, जदों अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस टाइम तो अपना पॉटरी का एवोल्यूशन शुरू हो गया सी। पर इत्थे उही पॉटरी दे एडवांसमेंट है जिहड़ी पॉटरी दे विच हुई है, कह लो कि एडवांस वर्जन ऑफ पॉटरी है जिहड़ी हाईली पॉलिश्ड पॉटरी है, इत्थे आपां नूं की हुई है रिसीव है जिहड़ी हुई है। बेसिक पर्पस उही है, स्टोरेज हैगा, ठीक है जी, फूड मेकिंग के लिए ये सारिया चीज़ों के लिए पॉटरी का जो यूज़ है वो किया जाता सीगा। लो हुण आपां ट्रेड की गल कर लैंदे हैगे आ। जदों आपां इन्हां दी सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सॉरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा किसी भी इकोनॉमी नूं चलाउण दे विच। तो इन्हां दा ट्रेड किदां दा सीगा, तो देखो जी जिद्दां आपां पहलां ही डिस्कस किया है कि इन्हां दे कंटैंपररी बहुत सारिया सिविलाइजेशन रहीआं ने, तो उत्थों की जिहड़ी स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हुई है आपां नूं, और कई जगह तो आपां नूं इत्थों दियां कुछ सील्स मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन दियां कुछ सील्स आपां नूं इन्हां दी कंटैंपररी सिविलाइजेशन तो रिसीव हुई ने, और कुछ उत्थों दियां सील्स इत्थे रिसीव हुई ने, जिन्हां तो हिस्टोरीअनस ने यह डिकोड किया कि इन्हां दे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीरीयड दे नाल या सॉरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी दे नाल की रहे होणगे ट्रेड रिलेशन है जिहड़े रहे होणगे। और इस तो बिना आपां ने यह भी चीज़ देखी सीगी कि ट्रेड दे विच कि खुद यह की करते सीगे, यह ब्रॉन्ज नूं क्योंकि प्रोड्यूस करते सीगे, बेसिकली एलॉय है जिहड़ा बनाते सीगे, तो यह कॉपर है जिहड़ी चैल्कोलिथिक पीरीयड जिहड़ी कि इन्हां दी कंटैंपररी है जिहड़ी चल रही सी, और टिन नूं यह अफगानिस्तान वाली साइड तो मंगवाते सीगे, और वह दोनों मिक्स करके की करते सी यह ब्रॉन्ज है जिहड़ा क्रिएटर करते सीगे, प्रोड्यूस करते सीगे। तो इतों यह भी पता लगता कि इन्हां दे जिहड़े आपस दे विच जिहड़े दूसरे कुछ अपनी सोसाइटी जिहड़ी रही है उन्हां दे नाल की सीगे सिविलाइजेशन रही ने, उन्हां दे नाल इन्हां दे ट्रेड है रिलेशन सीगे, ठीक है। तो मतलब ये एविडेंस नूं आपां यूज़ करके कह सकते हैं कि इन्हां दे ट्रेड रिलेशन इदां करके आपस दे विच सीगे, ठीक है जी। हड़प्पा है ट्रेड विद मैसोपोटामिया, जिन्होंने आप सुमेरियन भी कहने, सेंट्रल एशिया, पर्शिया हो गया, अफगानिस्तान, ऑबवियसली अफगानिस्तान तो आप देखा भी टिन मंगाते हैं, ठीक है, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, इन्हां दे नाल ये ट्रेड है जिहड़ा करते सीगे। और ट्रेड किहदे विच हुंदा सीगा, बाटर सिस्टम दे विच। बाटर सिस्टम दे विच बेसिकली ट्रेड है जिहड़ा हुंदा सी, कोई क्वाइन वगैरह जिहड़ा आपां नहीं देखिया हैगा। बाटर सी नो डाउट सील्स जिहड़ियां हुंदियां सीगियां, बट सील का कुछ होर मतलब हैगा, ठीक है जी। सील नूं एक पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टैंप आप कह दें, सील बेसिकली की होगी कि स्टैंप होगी, ठीक है जी, या सीलिंग कह लो आप, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नूं की करती होएगी, मार्क करती होएगी। पर इन्हां दा ओवरऑल जिहड़ा सिस्टम सीगा वो बाटर सिस्टम सीगा कि तैनूं आ चीज़ की जरूरत है, मैनूं आ चीज़ की जरूरत है, आपस दे विच उन्हां चीज़ां नूं एक्सचेंज है जिहड़ा कर लिया जांदा सीगा। तो कोई पेपर करंसी नहीं सी, कोई क्वाइन नहीं सीगी, तो जिहड़ा ये बाटर सिस्टम दे विच की करदे सीगे, अपनी कंटैंपररी सिविलाइजेशन दे नाल जिहड़ा ट्रेड है वो करदे सीगे। हुण होर इस तो बिना किहड़ियां चीज़ां दा ट्रेड है जिहड़ा करदे सीगे वो भी आपां देख लैंदे आ। तो काफ़ी एक्सपोर्ट आइटम सी जिहदा लाइक टीक हो गया, कुछ दिते हुए ने, स्लेट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है जी, जेड हो गया, लैपिस लजुली, गोल्ड, सिल्वर, टिन एक्सैट्रा, ये इंपोर्ट आइटम्स ने। थोड़ा जा इन्हों एक बार देख लियो, कुछ
ज़्यादा तो नहीं हैगा इहदे विचों अपना कोई प्रीलिम्स ओरीएंटेड क्वेश्चन तो नहीं बनता हैगा, बस थोड़ा जिहा अपनी कुछ आइटम्स नूं याद रख लिओ, दो के याद रख लिओ, दो के याद रख लिओ अगर राइटिंग दे विच तुहानूं जरूरत है पैंदी हैगी है। तो इस तो बिना दिखिया होया जी मैसोपोटामिया दीयां जिहड़ियां 3 सिलेंड्रिकल सील्स ने वो आपां नूं मोहनजोदड़ो तो मिलियां ने, जितों आपां ने ये इनफ्रेंस कढ़िया हैगा है कि यह मैसोपोटामिया दे मोहनजोदड़ो नाल की सीगे ट्रेड है जिहड़े रिलेशन सीगे। तो ऐदां ही हड़प्पा जिहड़ियां सील्स हैगियां ने ओह सूसा उर ठीक है नीपर जिहड़ियां मैसोपोटामिया दी जगह हैगियां ने उत्थों कुछ हड़प्पा सील आपां नूं मिलियां ने, हड़प्पा दियां इत्थों दियां सील उत्थे मिलियां ने। तो जित्थों अपने हिस्टोरीअनस ने ये इनफ्रेंस कढ़िया हैगा कि इन्हां दे उस सोसाइटी कंटैंपरेरी सोसाइटी दे नाल सिविलाइजेशन दे नाल सॉरी की रहे होणगे ट्रेड रिलेशन है जिहड़े रहे होणगे। तो ट्रेड बार्टर सिस्टम दे विच हुंदा सी, मल्टीपल आइटम्स नूं इह ट्रेड करदे सीगे ठीक है जी। आपां ने वो भी आइटम्स नूं भी डिस्कस कर लिया किद्दां आपां नूं ये चीज़ पता लगी है क्योंकि कंटैंपरेरी जिहड़ियां सिविलाइजेशन सीगियां उत्थे आपां नूं कुछ इन्हां दे एक दूसरे दीयां चीज़ां ने जिहड़ियां इत्थे तो उत्थे उत्थे तो इत्थे है जिहड़ियां देखण नूं मिलियां हैगियां ने, कुछ सील्स आपां नूं देखण नूं मिलियां हैगियां ने जिस तो आपां ने ये इनफ्रेंस कढ़िया कि यह की करदे होणगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट अपनी सिविलाइजेशन है उहदे नाल की करदे होणगे ट्रेड है जिहड़ा करदे होणगे। चलो हुण आपां अगे चलदे हैगे जी। गोल्ड बारे भी लिखिया होया स्टीटाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्नियां भी इन्हां दियां जिहड़ियां सील्स बनदियां सीगियां वो इहदे इत्थों ही बनदियां सी स्टेटाइट तो ठीक है, लीटर ऑन आपां पढ़ांगे। अच्छा हुण आपां वेट्स एंड मैजर की गल करते हैगे तां ये जिहड़े वेट्स सीगे इन्हां दे वेट्स इस तरीके दे नाल की करदे सीगे जी वेरी करदे सीगे। तां इत्थों आपां नूं ये चीज़ पता लगदी हैगी है कि इन्हां नूं किन्नी ज़्यादा वेट्स और मैजरमेंट की नॉलेज हैगी सीगी। जिद्दां आपां ने ब्रिक्स की गल कीती सी कि इन्हां दी ब्रिक की डिमेंशन 1 2 4 सीगी है ना, आपां ने चीज़ पढ़ी सी। तां ऐदां करके इन्हां दियां जिहड़ियां वेट्स सीगियां ओह ऐदां करके इन्हां दे प्रॉपर ऐदां वेट्स बने हुए सीगे। वेट सीगे जिहड़े इन्हां दे बेसिकली स्टीटाइट वगैरह तो बने हुए सीगे और क्यूबिकल फॉर्म दे विच जनरली जिहड़ी शेप है जिहड़ी इन्हां दी रहिंदी सीगी। तां ऑब्वियसली अगर यह इन्नी एडवांस सोसाइटी सीगी तो ऑब्वियसली जे इन्नियां वेट्स इन्नियां नंबर ऑफ वेट्स आपां नूं उत्थे देखण नूं मिलदियां ने वेट्स एंड मैजर, तो ऑब्वियसली यह इन्हां दी किते ना किते कोई ना कोई इंडस्ट्री है जिहड़ी इस तरीके दी ओह रही होएगी ठीक है। जे इंडस्ट्री दे उपर आंदा है तो आपां ये चीज़ नूं उत्थे लिख सकते हैं कि इन्हां दे वेट्स मैजर्स तो आपां नूं ये चीज़ पता लग्गिया है। काफ़ी जगह तो आपां नूं स्केल भी मिले हैगे ने, तो आपां पढ़ांगे लेटर ऑन सारियां आइटम्स किहड़ी चीज़ कित्थों मिली है ठीक है जी। तो इन्हां चीज़ों तो आपां इनफ्रेंस कढ़ के लिख सकते हैं कि किस तरीके की इंडस्ट्री उस टाइम दे विच एग्जिस्ट है जिहड़ी करदी होएगी और किन्ने ये एडवांस्ड पीपल सीगे उस टाइम ते। क्लीयर। चलो लिखिया होया द स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ वेट्स ठीक है, वेट्स की एक्यूरेसी और उन्होंने स्टैंडर्ड की दस दिया मेजर थ्रू आउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर रिमार्केबल। बहुत ज़्यादा बैटर तरीके दे नाल वेट्स एंड मैजर्स नूं रखिया गया सीगा इस टाइम दे विच आपां नूं सॉरी मिले हैगे ने। तां ये किन्ने मीटर दी हैगी है ये वो ये आपां नूं करन दी जरूरत नहीं हैगी, थोड़ा कुछ एक्सट्रा डाटा इत्थे लिखिया होया हैगा। चलो सील्स हुण आपां सील्स की गल करते हैं तां हड़प्पा सील्स आर मेड ऑफ स्टेटाइट। तां सॉफ्ट स्टोन सीगा, साइज़ हाफ एन इंच एन एक इंच का सीगा, आपां नूं रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं। हाँ उन्हां दी शेप जरूर आपां ने याद है जिहड़ी रखनी हैगी। जिहड़ी सील सीगी बेसिकली वो स्केयर या रिक्टेंगुलर टाइप की जिहड़ी सील है वो हुंदी सी और सील दे उपर आपां नूं कई जगह के उपर पशुपति हो गया, मदर गॉडेस हो गया, इन्हां दे भी साइन मिले हैगे ने, मतलब सिंबल्स ने जिहड़े पोर्ट्रेट हैगे ने वो मिले ने और उहदे सराउंडिंग आपां नूं कुछ स्क्रिप्ट्स है जिहड़ी कोड कीती हुई दिखी हैगी है जिन्होंने आपां हजे तक डिसाइफर है जिहड़ी नहीं कर पाए। तो ये चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। जिहड़ियां इन्हां दियां जिहड़ियां अपनियां सील सीगियां वो बेसिकली की सीगियां स्टेटाइट तो बनिया होंदियां सी। सील या फिर सीलिंग हम्पलेस बुल इज़ द मोस्ट यूज्ड एनीमल इन सील्स। तो हम्पलेस बुल समझते ना जिस बुल दे विच ऐदां करके हम्प नहीं होंदा। बुल बेसिकली वो चीज़ होंदी है जिवें ऐदां करके फॉर एग्जाम्पल एक बुल हैगा उहदी ऐदां करके कुछ बॉडी होएगी, मैनूं एग्जैक्ट देखो जी बनाना तो नहीं आता, तो इत्थे करके कुछ बुल दे की हुंदा हंप हुंदा। तो इत्थे हंपलैस बुल दे आपां नूं की मिले ने एविडेंस है जिहड़े मिले ने वो काफ़ी सारियां सील्स दे उपर उन्हां दी इमेज है जिहड़ी बनी हुई है। ही सील बेसिकली एक स्टैंप की तरह होएगी, किसी पर्टिकुलर जगह के उपर अथॉरिटी जिथे मार्क करन दी जरूरत होएगी उत्थे इन्हां सील्स की जरूरत जिहड़ी यूज़ है वो कीता जांदा होएगा ठीक है जी। ये चीज़ नूं ध्यान रखनी है। सील्स के उपर बेसिक आपां नूं बुल्स फिगर हो गई, मदर गॉडेस हो गया, पशुपति हो गया, स्क्रिप्ट हो गई,
ज़्यादातर पर ये सील्स के उपर आपां नूं की मिलिया हम्पलैस जिहड़ा बुल है वो मिलिया हैगा। ठीक है जी, तो इन्हां दी बहुत अच्छी मतलब इत्थों आपां नूं पता लगदा इन्हां दी सील्स नूं देख के। मेरे पास कोई इमेज नहीं हैगी, अदरवाइज मैं तुहानूं जरूर दिखांदी। ठीक है जी, तुसीं गूगल तो देख लिओ एक बार कि ग्रेटेस्ट की सीगे आर्टिसन सीगे जिन्हां नूं इन्नी ज़्यादा नॉलेज सीगी। ठीक है जी, और अपनी प्रॉपर्टी नूं किद्दां ओह करके रखना। बेसिकली की सीगा इहदे विच एक क्लास भी आपां नूं समझ आंदी हैगी है कि जे सील हैगी एक मार्क ऑफ अथॉरिटी हैगी है, तो ऑबवियसली जिद्दां अज दे टाइम दे विच एक गैसटेड ऑफिसर हैगा उहदी एक अपनी स्टैंप हैगी है, तो उस तरीके दे विच सोसाइटी दे विच कोई सुप्रीमेसी हुंदी होएगी जिहदी की हुंदी होएगी सील है जिहड़ी हुंदी होएगी। या फिर जिहड़ियां मार्केट्स पॉलिसी हुंदियां होणगियां, मार्केट दे विच एक जगह तो दूसरी जगह आपां ट्रेड कहने आ, तो हो सकदा उत्थे भी उन्हां सील्स दा या स्टैंप दा यूज़ है जिहड़ा करदे होण, जिहदी एक तरीके नाल अथॉरिटी है जिहड़ी पहचान है जिहड़ी उस चीज़ नूं डिनोट है जिहड़ी करदी है। बहुत अच्छियां सील्स आपां नूं इत्थे की ने मिलियां हैगियां ने। क्लीयर, देखो लिखिया होया जी अपनी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रेड जिहड़ी कि दसदी है। मीनस कि ट्रेड दे विच सील्स का मतलब यूज़ करते सीगे, स्टैंप का उहदा यूज़ करते सीगे, जिथों पता लगता सी कि जिहड़ी यह प्रॉपर्टी हैगी है या यह चीज़ हैगी है, ये वाली ट्रेडिंग चीज़ हैगी है, मतलब बेसिकली ये किहड़ी सिविलाइजेशन नूं की करदी है, बिलोंग है जिहड़ी करदी हैगी है। तां जिहड़ियां अपनियां सील सीगियां वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जिहड़ा प्ले करदियां सीगियां अपनी इकोनॉमी दे विच। तां जिथों पता लगता सीगा कि हाँ जी ये चीज़ इस हिस्से नूं की कर रही है, बिलोंग है जिहड़ी कर रही है। क्लीयर, तो देखो इत्थों तक आपां ने उन्हां दी बेसिक जो चीज़ां पढ़नियां सीगियां उन्हां नूं डिस्कस है जिहड़ा कर लिया। थोड़ा जिहा आपां देख लैंदे आं अगे की हैगा, आर्ट एंड क्राफ्ट नूं भी देख लैंदे आं। आर्ट एंड क्राफ्ट तो बाद रिचुअल तक आपां पढ़ते हैं जी इस लैक्चर दे विच। तां आर्ट एंड क्राफ्ट बेसिकली किद्दां दे सी, कॉटन क्लोथ्स सीगे जी उन्होंने। ठीक है जी, वूवन क्लोथ्स भी आपां नूं जिहड़ा मिले हैगे ने, रिकवर्ड फ्रॉम कित्थों मिले, मोहिंजोदड़ो। बोट मेकिंग आपां उन्हां नूं पता सीगी। ठीक है, क्योंकि कई जगह के उपर आपां नूं पोर्ट सिटीज़ भी मिलियां हैगियां, आपां पढ़ांगे। ठीक है जी, कित्थों कित्थों पोर्ट सिटीज़ मिलियां, तो उत्थों आपां नूं ये इनफ्रेंस निकलदा हैगा कि वो की सीगे जी बोट मेकिंग। तां मतलब इत्थों आपां नूं ये इनफ्रेंस निकलदा कि उन्हां नूं बोट मेकिंग दी भी की सीगी नॉलेज है जिहड़ी सीगी। अच्छा, ज्वैलरी ऑफ प्रेशियस स्टोन गोल्ड सिल्वर, मतलब की पता लगदा इत्थों कि वो गोल्ड स्मिथ भी एग्जिस्ट करते सीगे उन्हां टाइम पीरियड दे विच। मतलब ये उनका आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया है ना कि गोल्ड स्मिथ भी सीगे, बोट मेकर्स भी सीगे, वीवर्स भी सीगे। और इस तो बिना गैमलिंग वाज देयर फेवरेट टाइम पास। जो लेजर सीगे फ्री टाइम दे विच की करते सीगे, गैमलिंग है जिहड़ी वो प्ले करते सीगे। क्योंकि ये भी आपां नूं काफ़ी जगह के उपर जिहड़े एविडेंस है जिहड़े मिले ने, सीरीज सांप वगैरह काफ़ी जगह के उपर आपां नूं मिलिया हैगा, जिथों आपां ने ये इनफ्रेंस है जिहड़ा कढिया है कि यह फ्री टाइम दे विच अपना लेजर टाइम है जिहड़ा गैमलिंग दे विच है यूज़ है करते होंगे। क्लीयर, अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट बीडड मैन भी आपां नूं एक मिलिया, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जिहड़ी वो भी आपां नूं मिली है। बीडड मैन है जिहड़ा बहुत अच्छे तरीके नाल हाईली पॉलिश्ड एक ये कह लो कि मूर्ति टाइप आपां नूं मिली हैगी है, जिथे भी जिहदे विच आपां देखदे हां कि उस मैन दे की हैगी एक बीयर्ड बनी हुई है, बीयर्ड बनी हुई है बेसिकली। ठीक है जी, तां कई ये थोड़ा जिहा अपना मतलब इस चीज़ से हजे भी डिबेट हैगी है कि कई जगह ते इसनूं राजा कंसीडर किया गया कि माइट भी है किसी राजे की हो सकती है, या कई जगह के उपर इसनूं ये कहा गया कि किसी प्रिस्ट की हो सकती है। पर जिहड़ा बीडड मैन हैगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके नाल बनिया होया है, तां करके वो भी इत्थों पता लगता कि किन्ने बैटर तरीके नाल आर्ट एंड क्राफ्ट जिहड़ियां अपनियां मूर्तियां वगैरह सीगियां उसनूं की कर लैंदे सी, बना लैंदे सी। और जिहड़ा बीडड मैन सीगा बेसिकली आपां नूं मोहिंजोदड़ो तो है जिहड़ा रिसीव है होया। इहदे एविडेंस आपां नूं कित्थों मिले, मोहिंजोदड़ो तो जुड़ा मिले हैगे आ। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मतलब एक ब्रॉन्ज दी डांसिंग गर्ल भी आपां नूं मिली हैगी है, जितों आपां इन्हां दी आर्ट या इन्हां दे क्राफ्ट का पता लगता हैगा। और ये जिहड़ी डांसिंग गर्ल हैगी ये भी सिमिलर आपां नूं मोहनजोदड़ो तो ही मिली हैगी है। और ये अपने पास 3 बेंट आपां इहदी जिहड़ी यह मिली हैगी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल उहदे विच मिले हैगे ने। एक इत्थे गर्दन वाली साइड ते बेंट हैगा और एक इत्थे कमर वाली साइड बेंट हैगा और एक नीचे नी कोले 3 तरीके का ऐदा मतलब बेंट हैगा, जिन्हों आपां त्रिभंग मतलब जिवें आपां कह दें एक आसन हुंदा, एक त्रिभंग कह लो कि पोजीशन हुंदी है, उस चीज़ नूं यह की करदी है रिप्रजेंट करदी है कि जिथे उन्होंने ये भी सारियां पोजीशनस की करदी हैगी सीगी नॉलेज सीगी। तो यह चीज़
चीज़ याद रखियो, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल दे विच आपां नूं त्रिभंग मुद्रा है जिहड़ी बेसिकली उहदा आपां नूं एविडेंस है जिहड़े मिलदे ने। 3 बेंट बॉडी दे विच बेसिकली त्रिभंग की हुंदा, 3 बेंट बॉडी दे विच, एक अपनी नैक कोले, एक अपनी कमर कोले और एक अपने नीज कोले, जदों इदां करके 3 बेंट होण उहनूं आपां त्रिभंग मुद्रा है जिहड़ा बोलदे आ। तां इह जिहड़ी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल खड़ी हैगी है, मतलब एक इदां करके इमेज हैगी है, ये त्रिभंग मुद्रा दे विच जिहड़ी खड़ी हैगी है। तो इत्थों आपां नूं पता लगदा है कि इन्हां नूं इस चीज़ की भी नॉलेज सीगी। रैड सैंडस्टोन टोरसो, ये बेसिकली की सी हाफ नेक्ड मैन सीगा, ठीक है जी। इत्थों नैक तो लैके लोअर पार्ट ऑफ आर मतलब लैग्स कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ये इस वाले हिस्से का बेसिकली एक पोर्ट्रेट है जिहड़ा मिलिया हैगा, ठीक है। नेक्ड पोर्ट्रेट हैगा, रैड कलर के नाल इसनूं पॉलिश किया गया। तो इत्थों भी इन्हां दे आर्ट एंड क्राफ्ट का आपां नूं पता लगता हैगा। टैराकोटा टॉयज़, बहुत अच्छे अच्छे आपां नूं टैराकोटा टॉयज़ मिले ने। तो इत्थों भी आपां नूं इन्हां दी आर्ट एंड क्राफ्ट बारे पता लगता हैगा कि किन्ने ज़्यादा एफिशिएंट सीगे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट दे विच। तां इदां करके आर्ट एंड क्राफ्ट दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां इन्हां दे आर्ट एंड क्राफ्ट नूं रिप्रजेंट करदियां सीगियां, उन्हां सारियां चीज़ों को आपने डिस्कस है जिहड़ा कर लिया है। और उन्होंने देख के आपको पता लगता सी कि किन्ने हाईली या एडवांस्ड सुसाइटी सी कि इन्होंने किन्नियां सारियां चीज़ों की नॉलेज सी कि किन्नी ज़्यादा ये बैटर तरीके दे नाल आर्ट एंड क्राफ्ट है जिहड़े करते सी। बाकी रिलीजन जिहड़ियां रिलीजियस प्रैक्टिसिस सीगियां, ऑबवियसली अर्थ गॉडेस नूं भी ये वर्शिप करते सी, मेल डेटी, ठीक है। फैलस एंड योनी वर्शिप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। ट्री एंड एनीमल वर्शिप भी करते सी, फायर एंड वाटर वर्शिप भी ये करते सीगे। फायर, ठीक है, अग्नि की भी पूजा ये करते सी और वाटर की भी पूजा ये करते सी। और कुछ रिचुअल्स आपने देखे, अपने आपू एविडेंस है जोड़े मिले हैगे ने रिचुअल्स के, काफ़ी जगह तो आपू फायर ऑल्टर्स ने जोड़े मिले ने, कितने कालीबंगन एंड बन्नावली तो, जितों आपू पता लगता है कि यह एक तरीके नाल सैक्रीफाइसिस वगैरह के विच है जिहड़ा बिलोंग है कर, सॉरी विश्वास है करते होंगे, बिलीव करते होंगे। और एक आपने ग्रेट बाथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, ग्रेट बाथ एक रिचुअल मतलब पार्ट हैगा रिचुअल का, कि जिथे आपको पता लगता कि एक पर्टिकुलर हो सकता कि टाइम पीरियड के पर्टिकुलर डे के उपर, ठीक है, पर्टिकुलर ओकेजन के उपर उत्थे जिहड़े लोग ने इकट्ठे होके मतलब जिद्दां एक रिलीजियस बात है जिहड़ी लैंदे सीगे। तां इह जिहड़ा ग्रेट बात तो आपां नूं इन्हां दे रिचुअल्स बारे काफ़ी सारियां चीज़ां दा पता है जिहड़ा लगता है, ठीक है जी। फायर अल्टर्स तो आपां नूं पता लगदे सैक्रीफाइसिस वगैरह दे विच बिलीव है जिहड़ा करते होणगे। काफ़ी जगह तो आपां नूं हवन कुंड भी मिले ने, तां उत्थों भी आपां नूं इह चीज़ां दा पता लगता कि इन्हां दे रिचुअल किद्दां दे सी, पूजा वगैरह किवें करते सी, रिलीजन किहड़े मतलब देवी या देवतियां नूं ये वर्शिप करते सीगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है जी। तो ये नाल आपाने बेसिक सारा चीज़ पढ़ लिया कि उन्हां दी सोसाइटी किद्दां दी सी, उन्हां दी इकोनॉमी किद्दां दी सी और उन्हां दी जिहड़ी टाउन प्लैनिंग सी वो किद्दां दी सी। हुण आपां की करना हैगा है, नैक्सट आपां की पढ़ांगे, नैक्सट आपां पढ़ांगे जिहड़ियां साइट्स ने, किहड़ियां साइट्स आपां नूं कित्थों मिलियां ने। जिवें हड़प्पा अगर आपां ने सिटी डिस्कवर की हैगी है, तां हड़प्पा सिटी तो आपां नूं किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां मिलियां हैगियां ने। जिवें आपां ने हुण रैड सैंडस्टोन टोरसो बारे तां गल कर ली, ये की चीज़ सीगा, इत्थों आपां नूं पता लगता है कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके का सीगा। पर हुण आपां नूं पता होना चाहिए कि रैड जिहड़ा टोरसो सीगा वो किस मतलब सिटी नूं है जिहड़ा या किस उहनूं बिलोंग करदा सीगा। तां ये इत्थे अपना सारा प्रीलिम्स दा डाटा है जिहड़ा वो पिया हैगा, ये सारियां चीज़ां तुहानूं पता होणियां चाहीदियां ने। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बीयर्डेड मैन, ये बारे लास्ट टाइम जिहड़ा PCS होया सी उहदे विच सीधा क्वेश्चन पुछया होया सीगा कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बीयर्डेड मैन, एक होर चीज़ दित्ती हुई सी भी ये मोहनजोदड़ो पीरीयड तो बिलोंग करते सी। तो ऑबवियसली ऐदा करके तुहानूं पता होना चाहिए कि जिहड़ियां आ सारियां चीज़ां आपां नूं मिलियां हैगियां ने और ये मोहनजोदड़ो तो बिलोंग करदियां हैगियां ने। एक थोड़ा जिहा एनीमल्स बारे भी डिस्कस कर लैने हैगे आ। एनीमल्स लैक्चर नूं समअप करन तो पहला आपां एनीमल बारे डिस्कस कर लैने हैगे आ। तां आपां ने काफ़ी तरह के एनीमल है जिहड़े इत्थे आपां नूं मिले हैगे ने। फिश भी आपां ने देखिया, बुल दी भी आपां ने गल कर ली है, ठीक है। काफ़ी गॉट हो गया, शीप हो गया, डोमैस्टिकेशन डॉग हो गया, ये सारियां चीज़ां या सारे एनीमल एग्जिस्ट करते सी। तां किहड़ा एनीमल इन्हां नूं नहीं पता सी, तां ये चीज़ याद रखनी हैगी है। एक तां इन्हां नूं लॉयन बारे नहीं पता सीगा, ठीक है जी, और दूसरा इन्हां नूं हॉर्स बारे नहीं पता सी। हॉर्स के एविडेंस आपां नूं सुरकोटड़ा तो मिले हैगे ने, पर वो एक ही जगह पर आपां नूं हॉर्स का एविडेंस, एक हॉर्स की बोन है जिहड़ी मिली हैगी आ, उतों आपां ये कनक्लूजन नहीं ड्राइव कर सकते कि पूरी सिविलाइजेशन दे विच हॉर्स है जिहड़ा मिलिया होएगा। जिद्दां फर्स्ट लैक्चर दे विच मैं समझाया सीगा कि मल्टीपल जगह के उपर जो सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ है जिहड़ी सॉरी सिमिलर जगह के उपर मल्टीपल जिहड़ियां चीज़ां ने मतलब सेम टाइप की चीज़ है जिहड़ी मल्टीपल जगह के उपर सॉरी सिंगल जगह के उपर मिलती हैगी है, तां आपां मनदे हैगे या हिस्टोरीअनस मनदे हैगे कि यह जिहड़ी चीज़ है उस पीरीयड नूं की करदी हैगी है,
है बिलोंग है जी करती हैगी है। तो दो एनीमल्स जिन्हों का इन्हों नहीं पता सी, ना इन्हों लायंस का पता सी, ना इन्हों हॉर्स का पता सी। जे पूछा जाए कि टाइगर का इन्हों पता सी, हाँ जी बिल्कुल टाइगर का इन्हों पता सीगा। तो हॉर्स वैसे आपने पिछे देखा सीगा कि हॉर्स पिछे वाले पीरीयड के विच उत्थे आपां नूं मिलियां हैगियां ने पेंटिंग दे विच हॉर्स हैगा सीगा, आपां ने उदन भी डिस्कस किया सी। पर सिर्फ एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरीयड ही ओनली पीरीयड हैगा पूरी हिस्टरी दे विच जिथे आपां नूं हॉर्स के एविडेंस है जिहड़े नहीं मिले हैगे। ठीक है जी। और इस तो बिना मैटल दे विच भी एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है कि इन्हां नूं आयरन की बिल्कुल भी नॉलेज की नहीं सीगी। तो तीन एक्सैप्शन याद रखनिया ने, एक लॉइन याद रखना है, एक अपने हॉर्स याद रखना है और एक अपने आयरन है जिहड़ा याद रखना है। इस तो बिना बर्न ब्रिक अपने लास्ट लैक्चर के विच याद रखना है कि उस टाइम पीरीयड नूं नहीं बिलोंग करती हैं स्टोन एज बेसिकली। तो ये बारे ये अपने देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं मतलब ये कह लो कि समझ लिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है जी कर ली है कि उतों की सुसाइटी उतों का टाउन प्लैनिंग किदां दा सी। हुण आपां नैक्सट क्लास दे विच ये डिस्कस करांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां आपां चीज़ां नूं मिलियां हैगियां ने अपने हिस्टोरीअनस वालों, तो किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां किहड़े-किहड़े फेस नूं बिलोंग करदी ने। वैसे उस दे विच कुछ ज़्यादा समझाउण वाला डेटा नहीं हैगा, पर जिथे डिस्कशन की जरूरत पेगी आपां डिस्कशन करांगे और आपां नूं सिर्फ वो चीज़ां इन्ना आपां नूं लर्न करनियां पैणगियां कि ये चीज़ है जिहड़ी इस नूं की करदी है बिलोंग करदी हैगी है। किहड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ां हैगियां ने कि अपने याद जरूर रखनिया ने, इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी मैं नाल की करी जावांगी दसांगी। ठीक है जी। तो ये वाले लैक्चर के विच आपां इन्ना ही पढ़ांगे, नैक्सट पार्ट के विच आपां वो सारियां चीज़ों को कवर करांगे। ओके जी, थैंक यू।